So let's begin the session, guys. So thought of the day would be aerodynamically and scientifically. Everybody says that bumblebee can't fly, but anyhow it flies. It means if you decide to do something, you can achieve it. Regardless what other people are saying, regardless what the society is saying, still anything can be achievable if you decide, right? So we are moving towards equity research part two. We had a previous session last week. So we are into corporate governance. First of all, it's very important. Governance plays a very important role because if we do the complete analysis of any company, right? But what if the promoter of the company does something unethical, something wrong, or something illegal? Entire research would fail. Whatsoever time you had invested in that research, that would completely fail. So that is why corporate governance plays a very important role. All right. Now, in the previous class, we had discussed this thing that you can, a businessman can raise funds or can finance its business by multiple ways: friends, family, bank, bonds, then come to investors, that to private investors, private equity, as well as they can go for public. So this is something we discussed in the previous class, guys. No worries, guys. If you had missed any of the class, each session is a separate session. It's really few topics are linked with each other. Otherwise, each section and each class is a separate class. So no need to worry, right? Now today we are going to continue from that a company can be a private company, it can be converted into public, and a public company can vice versa become a private company again. Means this transition can be both ways. A private company can be converted into public, and a public company can go back to private. Why and how it takes place, we are going to discuss that as well. Now, guys, I want you to focus over here. It's very important. Now, being a businessman, right? You know, there are multiple ways of starting a business, first of all, right? It could be a private firm, means you start a shop, a very small shop. You start your business alone. हर इंसान बिजनेस अकेले स्टार्ट करता है, right? Slowly and steadily business starts growing. People come and join your business. People join the journey of your business. Slowly and steadily you join some partners with you. When the business keeps on growing, right, slowly and steadily people starts following you, and it becomes an organization. Then it becomes a group of people who are running that business. So it's a transition. Start आपने अकेले किया था. You started alone. But on the way, on the journey, many people, they join the hands, and you become a team actually. But the thing is that we need to understand why this transition is so important in equity research. Because this is also a way of making money, right, for many businesses. Now you started a business, it could be a chai wala, it could be a sabji wala, it could be a local shopkeeper, it's a proprietor business model. How it works, that you are a single owner right now, right? It's you who is controlling everything. The decision maker, right? You are the decision maker. You have the unlimited liability. If something goes wrong, it is because of you. If you do a blunder, the entire business will collapse, right? But over here, guys, one very important thing that comes into play: no business can be scaled being alone. आप कभी भी अकेले एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते. Nobody can, because it's a teamwork. तभी you might have seen small businesses and proprietorship, or a very small single owner business, they rarely grow, right? Because time is also an issue. You have just 24 hours in a day, first of all. Second, guys, you don't have the competence, the knowledge of all the sectors. You need to have a good marketing guy, you need to have a good finance guy, you need to have good logistic guys. There are so many departments, you can't handle all of them together, right? And then financing is also an issue. Means you can't finance your business. एक बैंक एक इंसान को मैक्सिमम कितना ही लोन दे देगा? 1 crore, 2 crore. You can't take 100 crore loans. You can't raise that much amount of money. It will be too difficult for you.
So that is why there is a need of transition always. कभी भी आप business start करोगे, guys, can you hear me properly? uh, some candidates are not able to hear me. Can you hear me and see me properly and clearly, everybody? All right, all right, all right. Then comes the partnership. For example, this time Amrit becomes partner of Swastik. Why? Because Swastik is expert of one domain, and another person is expert of IT domain. So you are combining now. लेकिन पार्टनरशिप में भी एक नुकसान रहता है. इफ़ इट इज़ जर्नल पार्टनरशिप गाइज, तो इफ़ अमृत डज समथिंग रॉन्ग, if one owner or one partner does something wrong, illegal or some bad activity, the entire business collapse. दूसरे पार्टनर को भी उसका वो भरना पड़ेगा, भुगतान देना पड़ेगा. You have to fulfill the wrongs of the another partner. Whereas if you choose the limited partnership, means now even if one partner is not performing well, it won't affect the business that way. But still, it is not a good way of doing business, guys. Eventually, you have to grow into an organization. आप कभी देखना, just observe in the world, right? All the businesses are organizations, guys. They are the companies. Now comes very, very, very important term. This is for non-finance and non-commerce students, guys. Please focus over here. जब भी आप company start करते हो, whenever you start a company, guys, the company becomes the separate legal entity. कंपनी अलग है, ओनर एंड प्रमोटर अलग है. दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज, गाइज. You might have heard that podcast of Mr. Vijay Mallya. What he was saying with Raj Shamani, that company is a separate entity, owner is a separate entity. You can't combine both of them. This is his excuse, right? And yes, absolutely, people play with this. अब कंपनी एक अलग इंसान की आइडेंटिटी रखता है, इट इज़ सेपरेट, एंड वेयर एज द ओनर एंड द प्रोमोटर इज सेपरेट. अब इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ पोल्यूशन इन जामनगर इज़ अ प्लेस इन गुजरात, राइट? अगर वहाँ पोल्यूशन होता है तो मिस्टर अंबानी विल नॉट बी लायबल ऑफ डैट. तो केस किसके ऊपर चलेगा? नॉट ऑन मिस्टर अंबानी बट ऑन रिलायंस, गाइज. रिलायंस एज अ कंपनी. सो कंपनी इज सेपरेट, business owner is separate. If something wrong is done by for example, if child labor is found in that organization, then Mr. Ambani would be criminalized. I hope you're getting the point. So there are two different entities now. All right, now coming to what types of companies are there, right? Now the types of companies are there is, see, Deepak, there are few exceptions in this, but the thing is that in finance, we are not auditing a company. We are analyzing a company. There is a bit difference between auditing and analyzing a company, right? Now we need to first understand how a company transitions from a small business into a large business. And हमने यहाँ पे देखना है, we are analyzing the promoters now. In corporate governance, we will be analyzing the promoters basically. I hope you're getting the point, right? Now, the private company, right? These are organizations जो थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं. Starting it started from a small business, but धीरे धीरे eventually it became somewhat a big business. जैसे for example, Byju's was a big business. अब वाईजूस का ह्यू एंड क्राई एंड वाईजूस का हल्ला इतना ज़्यादा क्यों नहीं पड़ा? वाई इट वॉज नॉट सच अ बिग न्यूज़? बिकॉज वाईजूस इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी, गाइज. तो वाईजूस वाले अभी भी थोड़ा बच गए बिकॉज पब्लिक ने पैसा नहीं लगाया. पब्लिक हैव नॉट इन्वेस्टेड इन वाईजूस. So there is a private limited company where around 200 people, it is related to 200 people, means that person can raise money from around few people. मीन्स ज़्यादा लोगों से पैसा नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ लोगों से पैसा उठाया जा सकता है. बट स्टिल लाइबिलिटी किसकी? उन 4-5 या 10-20 some few number of people, they are liable over here, and over here 200 is the maximum limit. But यहाँ पे पब्लिक से पैसा नहीं उठाया है. we have not taken money from public.
स्टिल गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट मच सीरियस ओवर हेयर कि चलो थोड़े लोगों का नुकसान है, या गवर्नमेंट इज सीरियस बट नॉट दैट सीरियस, राइट? इवेंचुअली दिस कंपनी ग्रोज, वाई? बिकॉज नाउ इट नीड्स मोर मनी, अब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, right? So it raises money from more number of people. Now it is going public, but it is not listed in stock exchange, but still it raised money from number of people. Still अभी भी ये कंपनी जानी मानी कंपनी है, renowned कंपनी है, but still it is not on the stock exchange, right? Then eventually when this company needs more money, guys, it will plan to go in stock exchange, it will plan to get itself registered in stock exchange and listed in stock exchange. उससे फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पे कंपनी फॉर एग्जांपल जब प्राइवेट थी तो कुछ लोगों से पैसा ले सकती थी, तो 100-200 करोड़ समथिंग लाइक दैट. जब अनलिस्टेड है तब थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, मोर नंबर ऑफ पीपल कैन फाइनेंस दिस बिजनेस. तो यू कैन से सम अगेन hundreds of crores of investments can raise. But when it becomes public, guys, the amount it can raise can be huge. काफ़ी ज़्यादा पैसा, depending upon the valuation it can raise, right? Depending upon expansion, depending upon the requirement. इस सब का फ़ायदा हमें क्या है? इस सब का फ़ायदा ये है guys, when you will be into investment banking, right, you will be finding few companies which are listed, which are not listed. So it's a website. I want all of you to explore this website at your home. Unlisted zone. ये वो companies हैं जो अभी जो those who are not listed in the stock market. So I want you to have a glance on these companies. आपने इनका नाम किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा. I want you to have a glance over here. See, these are the companies who are not registered in stock exchange, but still you can invest. So being into equity, right, अगर आप equity में ही invest कर रहे हो, so there will be two types of equities. Some who are listed, some who are not listed yet means it may get registered in future. तो इसका मतलब है अगर हम पहले ही पकड़ लें सर, could be. I'm not going into any advisory right now, but since you have so many companies who are already listed, we should focus over there. But being into equity research, guys, ऐसा टाइम आपके पास आएगा when you may ask to find the good companies who are not listed yet. I hope you're getting the point, everybody. Any doubts till now? Harsh, I am going to answer this question in the just coming slides, right? Unlisted companies are not traded on stock exchange. Guys, one more thing over here, please. Ask, don't just type the chat. I want you to be mature enough to write a mature question. Don't just randomly type. It's not a school class, it's not a coaching class, guys. It is on job training. अगर आप में से कई लोगों ने अभी जॉब स्टार्ट की है, OJT बोलते हैं इसको, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, या इसको ऐसा बोल सकते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग. विप्रो, इन्फोसिस, सारी जगह ट्रेनिंग्स होती हैं. ट्रेनिंग्स के बाद एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं वहाँ पे. तो सो इफ़ यू डोंट बिहेव, so it's very difficult. So I want you go, all are mature people, ask mature questions only, right? Now see, these are few companies who have applied for red herring prospectus, means who have applied for IPOs. इनके IPO आने वाले हैं in the coming times. So physics वाला is a renowned company. Lenskart is a big business, guys, बहुत बड़ा. they are approximately raising around 66,000 crore rupee. 60,000 करोड़. जस्ट इमेजिन गाइज, इट्स अ ह्यूज नंबर. इतना पैसा कोई बैंक लोन नहीं देगा, इतना पैसा कोई इन्वेस्टर नहीं लगाएगा. दैट इज़ वाई कंपनीज ट्राई टू गो पब्लिक. यू माइट हैव सीन अ Lenskart near to your hometown. Small towns, they are penetrating into small towns. Now they are penetrating worldwide. So why I'm saying this, you can figure out few companies before getting listed itself. So this is something equity research analysts do. So a private company can be converted into public but unlisted, and it can be further converted into public plus listed. Means जो stock market में जा सकते हैं raising IPO to raise a lot of money, guys. उस पैसे को फूक दो. Just for the lighter note, I would say उस पैसे को जला दो, उस पैसे को बैंक में सेविंग में डाल दो, तुम्हारी मर्जी. You don't need to pay it back. ये हमने पिछली क्लास में किया था. 2 क्वार्टरली आपको बताना पड़ता है what you are doing, you're using in a good way, bad way. You have to tell it quarterly.
बट इफ़ आई टेल यू ना लाइटर नोट, दैट इज़ योर मनी गाइज. बैंक का पैसा फिर भी वापस देना पड़ेगा, इक्विटी का पैसा वापस नहीं देना पड़ता. So you can use this money tension free kind of thing. Yes, being public and listed is a big headache, big hustle. हर क्वार्टर आपको रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, आपको बताना है पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. इसमें वो कम है पब्लिक अनलिस्टेड में, बिकॉज इट्स अनलिस्टेड, गवर्नमेंट की इतनी इंटरफेरेंस नहीं है अभी भी. यू आर सेफ फ्रॉम दिस. यहाँ पे तो आपकी मर्जी, इट्स योर विश, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव्स गाइस, आरुषि हम अभी आगे करेंगे, वी विल बी डूइंग दैट इन द कमिंग क्लासेस. अभी जो टॉपिक है विल फिक्स टू दैट, स्टिक टू दैट. सो अ प्राइवेट कंपनी एग्जांपल इज इन्फोसिस, बीपीएम, यू नो बिजनेस. इट इज दिस कंपनी डील्स विद कंसल्टेशन गाइस. इन्फोसिस, बीपीएम लिमिटेड. पब्लिक बट अनलिस्टेड कंपनी रिलायंस रिटेल. रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आपने सुना है जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड, it is public but it is still unlisted. Maybe in future any IPO comes. और TCS तो सबको पता है, it is the listed company. Now guys, I want you to focus over here. इसका फ़ायदा हमें क्या है being an investment banker, being equity research guy. See, I want you to focus. जब भी कोई कंपनी लॉस में चलती है, whenever company is in loss, जैसे for example, this is the real life example, Hilton Hotels. Hilton Hotels लॉस में चल रहे थे, राइट, दे वर इन लॉस. तब उनका शेयर प्राइस था $20 पर शेयर. ब्लैक रॉक ने इसको खरीद लिया. वो भी द ट्रांजैक्शन वाज लाइक 70% अमाउंट दे पेड वाज टेकन इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम अ बैंक. उन्होंने सिर्फ अपना 30% अमाउंट लगाया. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर 100 करोड़ की डील होती इंडिया के हिसाब से, 70 करोड़ वॉज पेड बाय द बैंक and 30 crore paid by the company. Easy way around. पैसा यहाँ से आप घुमाया बस. They purchased the same hotel at $40 per share, डबल प्राइस में खरीद लिया. Why? They made this hotel chain from public to private. इन्होंने इसको public listed से हटा दिया और वापस इसको प्राइवेट कर दिया. And they converted this into profitable company. प्राइवेट में ले जाके फ़ायदा क्या हुआ? What was the benefit to them? देखो, जब पब्लिक होती है कंपनी एंड लिस्टेड होती है, यू हैव टू डू क्वार्टरली, देयर आर सो मैनी कंप्लाइंसेस बेसिकली, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट को बताना, पब्लिक शेयर होल्डर्स को बार बार रिपोर्ट करना, क्वार्टरली रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग. इट इज़ ह्यूज हसल गाइस. कंपनी काम करे या रिपोर्टिंग करे. सो दे कन्वर्टेड इट इनटू प्राइवेट, तो एक खर्चा वो बच गया एंड दे फोकस्ड ऑन द प्रॉफिट ओनली. वंस इट टर्न्ड एंड कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस, दे सोल्ड द सेम बिजनेस. they made the same business into public and listed again. उसको फिर से listed convert किया, they converted into listed, and now it was listed at $120 per share. इससे तो बहुत multiple 3 times ज़्यादा था, and they made profits. This is how the entire business works, and this strategy is used in mergers and acquisitions, and when you take over a company. So you have to keep this in mind, why a company is converted into public and listed, why it is going back to private again. I hope you have a good logic in your mind now. Munir, I would read the name as Munir. See Munir, private equity यहाँ तक रहेगी. मीन्स यहाँ पे कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. प्राइवेट इक्विटी कुड बी शार्क टैंक इंडिया, राइट. बट यहाँ पे दे आर रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. शार्क टैंक इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट इक्विटी इफ यू वांट टू आस्क. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट topic. Next topic was, so it means the company can revolve in amongst all this. Why a company would become public? A company would become public to raise money. But the negative of this is you have to follow a lot of compliances. गवर्नमेंट की बहुत नज़र रहती है, सेबी की बहुत नज़र रहती है. कंपनी प्राइवेट क्यों होती है? आइदर टू कन्वर्ट इट सेल्फ इंटू प्रॉफिटेबल, आइदर वो सरदर्दी कम करना ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, और टू गेट कट ऑफ फ्रॉम द पब्लिक, या अपने आप को अकेले ग्रोथ करने के लिए इट कैन कन्वर्ट बैक इनटू पब्लिक. नाउ गाइज, आई वांट यू टू फोकस ओवर हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट.
गाइस वेंचर कैपिटल हमने पिछली बार कर लिया था हीरेंद्र सिंह. वी विल बी कमिंग टू द वेंचर कैपिटलिज्म अगेन, वेंचर हाउ वेंचर कैपिटलिस्ट वर्क. अभी वी आर फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक, राइट? ऑलराइट, चलो. नाउ गाइस, प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ कंपनी. यू स्टार्टेड अलोन, रास्ता अकेला ही चला जाता है, देन रास्ते में दोस्त बन जाते हैं, एंड देन दैट फ्रेंडशिप ग्रोज एंड यू बिकम अ ग्रुप ऑफ पीपल. दिस इज़ हाउ a business grows. All the big companies of the world are, they are organizations. A company is a team of people where experts come in. Marketing का अलग expert, IT का expert, sales का expert, finance का expert. All are different experts now. They have their competence. Just imagine, एक IT एक्सपर्ट 12 घंटे काम कर रहा है, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट 12 घंटे. ऑल द एक्सपर्ट्स आर वर्किंग 12 आवर्स. कंपनी वुड expand and grow just like insane, right? But एक proprietorship, एक अकेला इंसान ये सब नहीं कर सकता. That's why you have to convert your proprietorship small business into a company to grow, guys. Expanding is a different strategy. Small business is a completely different domain. तभी आपने शार्क टैंक इंडिया में सुना होगा, एक्सपेंशन में बहुत दिमाग लगता है. You need to have good team of people. Now I want you to focus over here, guys. बिजनेस में कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं. दे आर फ्यू स्टेक होल्डर्स, फ्यू पीपल हु आर रनिंग द बिजनेस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस, राइट? सबसे पहले आता है प्रमोटर, राइट? प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु स्टार्टेड अ बिजनेस, फाउंडर ऑफ अ कंपनी. फाउंडर को प्रमोटर बोलते हैं इन फाइनेंशियल टर्म्स. दिस प्रमोटर हायर्स अ CEO. ये प्रमोटर एक CEO हायर करता है. This CEO will hire the further management and the employees. This is how the business works. इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन USA में ऐसा रहता है. Just think first, right? USA में गूगल किसी ने बनाया, right? गूगल का CEO कोई और है आज, और मैनेजमेंट में कोई और लोग हैं. Means what happens over there कि जो इंसान बिजनेस बनाता है, starts a business, he hands over the business in some another hands. ताकि खुद आज़ाद, he can become a free bird, he can enjoy his life, or you can say he can work in some different project. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में प्रमोटर एंड CEO एक भी हो सकता है. लाइक मिस्टर अंबानी, he is the promoter of the company and he is the CEO of the company. So what I want to say, promoter is the founder of the company. CEO and promoter can be a one person. इंडिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है because these are family businesses. But in foreign countries, the promoter could be different and CEO could be different. Example could be Google, example could be Twitter, example could be, there are so many examples, guys, right? तो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने छोड़ दिया, अपने पास स्टेक होल्डिंग रखी, उसने एक CEO हायर किया जो आगे एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा एंड हु विल मैनेज द कंपनी. So there's a difference in Indian way of doing business and foreign way of doing business. They hand over the legacy. वो अपना लेगेसी आगे दे के जाते हैं. इंडिया में लेगेसी फैमिली में रखने की ट्राई की जाती है. दिस इज अ बिग डिफरेंस, राइट? नाउ कमिंग टू अनदर वे ऑफ हायरार्की ओवर हियर, गाइज. आई वांट यू टू सी, especially I know there are many CAs in this class as well, guys. This could be a revision for you, but there are many people who are from science background and arts background, so they need to understand this thing. See, guys, we are the shareholders. हम लोग हैं शेयर होल्डर्स, राइट? वी वोट, हम लोग वोट करते हैं, राइट? वंस वी वोट, वी चूज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हम लोग चूज़ करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? हम लोग जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज़ करते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ 5, 6, 10, 12, 15 पीपल, राइट? ग्रुप ऑफ पीपल हु फर्दर चूज CEO. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स CEO चूज़ कर रहे हैं. And this CEO further chooses the employees of the company, the management of the company. तो बेसिकली कंपनी में जो काम करते हैं वो ये है एग्जीक्यूटिव्स. इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, राइट? Now we will be discussing CEO and board of directors in the coming classes, but today we are focusing mainly on promoters and how the stakeholding pattern changes, right? हमने कभी वोट दिया नहीं. आप बोलो सर कौन सा वोट दे दिया ये? हमें मैसेज आते हैं, if you are into stock market, you might have received SMSs, you might have received email की वोटिंग हो रही है, you should give online vote like that. आपने देखा होगा ऐसा. हम लोग कभी ट्राई नहीं करते. You should try.
वहाँ पे वी आर चूजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, and these board of directors will further take the decisions for the company. They will hire the executives, they will, and these executives will hire the management. They will earn profit, guys, and they will give the profits back to the voters or shareholders. असली में मालिक कौन है? हम लोग, shareholders. ऐसा होता नहीं है वैसे, but shareholder ही मालिक होते हैं कंपनी का. बोर्ड मीटिंग्स, हाँ बोर्ड मीटिंग्स में गाइज वी विल बी डिस्कसिंग द एनुअल रिपोर्ट्स जस्ट इन द कमिंग क्लासेस. सी प्रोमोटर कुड बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रोमोटर. जो वर्ड है वो इट्स अ फाइनेंस वर्ड, कुड बी यूज फॉर द फर्स्ट डायरेक्टर, फाउंडर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया. सो इट्स समथिंग हु हैव स्टार्टेड द बिजनेस, कंपनी का मालिक बेसिकली, राइट. एनी डाउट्स ऑल राइट. नाउ chairman and promoter में I will be just coming, you'll get to know this chairman and promoter thing in the annual reports, guys. We will be seeing few annual reports. Now I hope this is clear to everybody. Promoter, तो यहाँ पे guys promoter का stake holding क्या रहेगा? So sir, what is the role of promoter over here in this? So promoter के पास अगर शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, more than 50%, तो promoter आएगा board of director में, यहीं बैठेगा जाके, but इसके पास voting power ज़्यादा होगी. मीन्स इवन दिस प्रोमोटर इज ऑल्सो वोटिंग फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसकी वोटिंग पावर ज़्यादा है. बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हियर गाइस, फेसबुक में मार्क जकरबर्ग के पास शेयर होल्डिंग कम है. अभी मैं बताऊंगा शेयर होल्डिंग क्या होती है, बस जस्ट थिंक राइट नाउ उनके पास शेयर होल्डिंग कम है, लेकिन उनके पास जो शेयर्स हैं, 2 शेयर्स आर डबल शेयर्स, वो अलग तरह के, दीज आर स्पेशल शेयर्स जहाँ पे एक वोट की पावर मल्टीपल बाय 2 हो जाती है. That is the multiple times increases. So promoter also have the voting power. So ये लोग भी वोट करते हैं, promoter भी वोट करते हैं, and they choose board of directors and then he will choose the executives and management, और ये लोग फिर कंपनी चलाते हैं. Just like in a country how it works. हमने मोदी जी को नहीं चूज़ किया, हमने किसको चूज़ किया? हमने MPs को चूज़ किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मोदी जी को चूज़ किया, एंड नाउ ही इज़ रनिंग द कंट्री. ये वोटर्स हैं, हमने एमपीज़ को चूज़ किया, यहाँ पे इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ किया, इन्होंने फिर सीईओ चूज़ किया जो प्राइम मिनिस्टर है, एंड दिस इज़ गोइंग टू मैनेज द कंट्री नाउ बाय हायरिंग आईएएस ऑफिसर्स एंड तहसीलदार्स एंड एसडीएम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑफ द सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड दे विल रन द कंट्री. दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स इन अ कंपनी एज वेल. इट्स क्वाइट ह्यूज गाइज, इंसेनली ह्यूज. लेकिन कभी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आई टोल्ड यू स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे ग्रो करेगा ना, गुड पीपल ज्वाइंस द हैंड, दे अकम्पनी यू. जब अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका बिजनेस छोटे से बड़ा कब हो गया, राइट. यस डेफिनेटली हर्ष, आई एम जस्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन. एग्जिट ऑफ द प्रमोटर, उसी के प्रैक्टिकल्स में अभी हम आएंगे. Yes, if the CEO Mark has 75, absolutely, Amrit, very nice. Now coming to the next slide. So we are touching promoter today, how it works. So promoter is a superman, superwoman as well. So we are we are not gender biased over, gender neutral हम लोग. So even a boy can start a business and a girl can start a business, and this is superman, superwoman. So these are the promoters basically. अब हमें ये सारा कुछ पता कहाँ से चलेगा? ये सारी तो बातें बहुत अच्छी हैं सर, ये सब हाउ विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स? सो देयर आर फ्यू रिपोर्ट्स दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहला आता है रेड हेरिंग प्रस्पेक्टस. वैसे तो हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था. इफ़ द स्टूडेंट्स ओवर हेयर आर फ्रॉम फर्स्ट क्लास दे मस्ट बी नोइंग, बट वी विल बी डूइंग इट अगेन. देन कम्स द एनुअल रिपोर्ट्स, राइट. देन कम्स द कॉन कॉल, एंड देन कम्स द शेयर होल्डिंग पैटर्न. हर्ष, यू विल गेट योर आंसर ओवर हेयर. रेड हेरिंग प्रस्पेक्टस होता है जब भी कंपनी पहली बार मार्केट में जा रही है, मीन्स दे आर रेजिंग मनी, दे आर फाइनेंसिंग देयर बिजनेस फ्रॉम पब्लिक. तो पब्लिक को कुछ बताना तो पड़ेगा. जैसे मोदी जी जब इलेक्शन लड़ते हैं और बीजेपी और कांग्रेस जब इलेक्शन लड़ते हैं, दे गिव अ मैनिफेस्टो लाइक अ पीस ऑफ पेपर कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं, हम इतने लोग हैं, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क. सो सेम वे एंड व्हेन अ मूवी इज़ रिलीज्ड इन पब्लिक, पहली बार कोई मूवी पहली बार रिलीज़ होती है तो क्या करते हो? ट्रेलर रिलीज़ करते हैं. ट्रेलर में होता है कि हम ये हीरो है, ये डायरेक्टर है, लाइक दैट. सेम इज़ दिस. जब कंपनी पब्लिक में जाती है, उन्हें रेड हेरिंग प्रस्पेक्टस रिलीज़ करना पड़ता है, विच वी नेवर रीड.
So we're truthful. Many of us, we never have read. I have met many CAs who were my students जिन्होंने कभी पूरा रेड हेरिंग परस्पेक्टिव से एनुअल रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं, तब भी CA बन गए. इट्स नॉट कि पढ़ के ही CA बनते हैं, बट पढ़ना चाहिए. बट मैनी पीपल दे डोंट रीड. बट ये पहला ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को जाता है. Then every year the company, when it becomes public, it has to release the annual reports कि हमने पूरा साल क्या किया. Then comes the quarterly reports. Then comes the con call. Con call होती है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अंकित इज टॉकिंग टू मी, राइट. सर आप क्या कर रहे हो आजकल? ओके, आई एम डूइंग दिस. सर व्हाट इज योर डे टू डे शेड्यूल? ओके, माई शेड्यूल इज दिस. सर व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, बट थर्ड पर्सन इज रिकॉर्डिंग दैट कम्युनिकेशन and that communication goes to public. तभी इसको बोलते हैं con call. It could be with media, it could be amongst minutes of meeting की तरह हो सकता है. It could be a conversation or it could be a PPT as well, right? तो ये कंपनी इशू करती है. We will be discussing all this in the coming classes. Today we are going to focus on shareholding patterns. सब पढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, shareholding pattern, how it works. All right. Any doubts, guys, till now? Rajvi, very nice, Rajvi. I'm really glad to hear that. Thank you so much. Now, Harsh, आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको. इन कौन कॉल या सो इट कुड बी कॉन कॉल्स, कुड बी विथ मीडिया एज वेल. अभी जैसे जैसे हम गाइज आफ्टर 5 or 6 सेशंस यू विल बी इन उस स्टेज में आप पहुंच जाओगे व्हेन यू विल बी हैविंग गुड कॉन्फिडेंस और आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं खुद आंसर हो जाएंगे. जस्ट गो विद द फ्लो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलायंस से, राइट. सो दिस इज स्क्रीनर. This is free. I want all of you to install it in your Androids, in your laptops, bookmark it. iPhone में इसकी ऐप नहीं है, but still I want all of you to just have. हम लोग ये सारा का सारा करेंगे with time. I will teach you all the what everything means over here. सबसे पहले today we will be focusing on investors. जब भी आप कोई कंपनी डालेंगे, click over here in investors. या आप इसको scroll down करके नीचे आएंगे, right? Now at the end over here a shareholding pattern would come. कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है. इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी ईयरली एज वेल. आप दोनों देख सकते हैं, बट वी विल बी सीइंग ईयरली एज वेल टू सी द ट्रेंड ओवर हेयर. तो रिलायंस में सी दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इन्वेस्टर्स में गए, यहाँ क्लिक किया. ओवर हेयर सी द, आई वॉन्ट यू टू सी फर्स्ट. See what you can analyze from this. पहले 46% था, 47, 47, 50, 50, 50 and then 50 is constant. Not just 50, not just 50, huh? More than 50. It could be 50.07, 50.5, but it's always more than 50 since then. 50 से कम नहीं गया या 50-50 नहीं हुआ. Always more than 50, right? Thank you, Azuz. या अरुषि, हम लोग इसमें कोड्स भी लगा सकते हैं. वी विल बी डूइंग दैट. नाउ आई वांट यू टू सी अवनी, वी विल बी मेकिंग रिपोर्ट्स ऑन दिस सेशन. दैट्स वाई मैंने पिछली बार ये कहा था कि हम लोग रिपोर्ट्स ऐसे बनाएंगे. फर्स्ट वी विल बी चूजिंग अ सेक्टर, देन वी विल बी चूजिंग a company and then we will make reports. But before we make reports on Excel we need to understand few things, because reports में बहुत सारी चीज़ें जाएंगी. उसमें मैक्रो वाला पार्ट भी जाएगा, उसमें थोड़ा सा आपका टेक्निकल भी जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे, देन थोड़े फाइनेंशियल मॉडल्स जाएंगे. रिपोर्ट मेकिंग इज़ अ बिग टास्क गाइज. It will at least take 5 or 6 classes. So that will be coming at the end. Before that we will be completing the technicals, financial reports, ratios, everything we need to complete. All right. अब यहाँ पे देखो गाइज, इट इज़ ऑलवेज मोर देन 50%. अभी जो हमें चीज़ यहाँ समझनी है कि मिस्टर अंबानी इज़ अ फैमिली, रिलायंस इज़ अ फैमिली ओन्ड बिजनेस एंड स्टेक हमेशा मिस्टर अंबानी ने अपने हाथ में ही रखा है. दैट इज़ मोर देन 50%. It's a good sign. So whenever you are starting your investments, now Harsh, your question will be answered and many of you who have the doubts you can ask. जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पैसे या अपने क्लाइंट्स के पैसे या कभी अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे, whenever you are making the reports,
गाइज, यू नीड टू सी दिस थिंग फर्स्ट. अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% है या 50% से ज़्यादा है, इट इज़ अ गुड साइन. वाई गुड साइन? बिकॉज प्रमोटर अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लव्स द बिजनेस एंड ही इज़ कम्प्लीटली इन टू द बिजनेस. चलो मैं इसको एग्जाम्पल देके बताता हूँ. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अवनी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट. शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ज़ीरो से स्टार्ट किया. जस्ट इमेजिन गाइज हाउ मच लव शी मस्ट बी डूइंग विद द बिजनेस. नो मोर देन द फैमिली इटसेल्फ आई वुड से, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिजनेस में लगाया. जस्ट इफ़ आई आस्क अवनी टुमारो, अवनी अपना सारा बिजनेस मुझे भेज दो, शी विल बी डेफिनेटली वेरी टची एंड इमोशनल. सर इतने प्यार से बनाया है, अपने बच्चे की तरह पाला है, हाउ कैन आई जस्ट गिव इट? सो दिस इज़ द लव अ बिजनेस मैन कैन हैव फॉर हिज बिजनेस. सो दैट्स वाई इट इज़ गुड. अगर मैं अवनी से बिजनेस के बारे में पूछूंगा तो शी विल बी नोइंग एवरी डैम थिंग अबाउट हर बिजनेस, ए से लेके बी तक एवरीथिंग. सर एक छोटा नट बोल्ट ऐसे बनता है, ऐसे सेल होता है. शी मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस. इट मीन्स शी इज़ हैविंग मोर ओनरशिप इन द बिजनेस. रात को जाग जाग के काम कर रहे हैं. बट ऑन कॉन्ट्रेरी, लेट मी शो यू वन मोर पैटर्न ओवर हियर. दैट पैटर्न कुड बी ICICI. सी, अब यहाँ पे हमने ICICI का खोला, ICICI बैंक, एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्टर्स अगेन. नाउ सी गाइज, यहाँ पे ज़रा एक बार नज़र मारो. यहाँ प्रमोटर कुछ दिख रहा है आपको क्या? कैन यू सी प्रमोटर ओवर हेयर? यू डोंट सी प्रमोटर ओवर हेयर, यू विल नॉट सी प्रमोटर ओवर हेयर, बिकॉज यहाँ प्रमोटर है ही नहीं. सो हु इज मैनेजिंग दिस बिजनेस? सो दिस बिजनेस इज मैनेज्ड बाय दीज पीपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड CEO. तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड CEO, अब अबनी ने तो बिजनेस खुद बनाया था, राइट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इन केस जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अबनी को ना बहुत दुख के साथ वो बिज़नेस बेचना पड़ गया मुझे. अबनी सोल्ड हर बिजनेस टू मी. क्या मैं अबनी के बिजनेस को अपना समझ के, मतलब विल आई बी एबल टू डू द सेम जस्टिस टू द बिजनेस बट शी हैज़ डन? फर्स्टली नो. क्या मैं उस बिज़नेस के बारे में सब जान पाऊंगा जल्दी? मे बी नॉट दैट फास्ट, बट सून इन फ्यूचर, राइट? लेकिन अपनी यहाँ पे एक और चीज़ अगर कर ले, अपनी आरुषि को हायर कर ले बिजनेस चलाने के लिए और अपनी खुद छुट्टी चला जाए, तो आरुषि इज जस्ट अ CEO ऑफ द कंपनी हु गेट सैलरी. गाइज, क्या सैलरीड इंसान जस्टिस कर सकता है क्या बिजनेस के साथ? सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स ओवर हियर व्हेन देयर इज नो प्रमोटर इन द कंपनी? बेसिकली हाउ इट वर्क्स, सो दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे रन द बिजनेस. ये लोग बिजनेस को चलाते हैं. दे हायर द CEO, दे हायर द मैनेजमेंट एंड दे डू ऑल द डिसीजन मेकिंग. बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज या छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये आता है. अबनी वॉज द वन मैन आर्मी. शी वॉज जस्ट रनिंग द बिजनेस सोलो. शी मे नॉट हैव द कॉम्पिटेंस ऑफ मार्केटिंग, शी मे नॉट हैव द कॉम्पिटेंस ऑफ फाइनेंस, क्या पता सिर्फ IT की नॉलेज रखती हो फिर. बट यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक बेनिफिट ये हो सकता है कि दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुड बी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉम्पिटेंट एंड एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स. वो भी बहुत अच्छी बात है. बट गाइज, यहाँ पे एक नुकसान ये रहता है, जो अपनापन होता है बिजनेस का वो कम हो जाता है. सो वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी जहाँ बिजनेस ओनर्स हैं ही नहीं, इट इज़ समथिंग मतलब थोड़ा सा, आई वुड से यू शुड नॉट इन्वेस्ट, बट a ring should come in your, a bell should come in your mind, ring in your mind कि यार इसमें थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी इस बिज़नेस में. मेरा बोलने का मतलब, what I want to say over here is that whenever there is no promoter in the company or whenever the promoter shareholding is decreasing. Let me show you one more example over here, guys. The example could be of GPT Infra. यहाँ पे प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग कम हो रही है, 75 से घट के 69. आपको एक और बताता हूँ मैं. सो दीज आर द फ्यू कंपनीज जहाँ पे शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स कम हो रहे हैं. 55% प्रमोटर के पास था, कम होते होते 40. वाई इट इज़ डिक्रीजिंग? जब भी ये कम हो, whenever it starts decreasing, it should come in your mind why it is happening. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज. इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि कहीं प्रमोटर कंपनी बेच के भागने तो नहीं वाला, राइट? मीन्स ही कैन स्टार्ट सेलिंग हिज ओन शेयर होल्डिंग एंड कैन रन अवे.
वेरी इजली। या प्रमोटर को अपने बिजनेस से खुद ही लगाव कम हो गया, अरे यार कोई कुछ और करते हैं, बड़ा करते हैं, जिसको छोड़ो, तो धीरे 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 करके ही विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर्स, और उस पैसे से वो कहीं और पैसा लगाएगा। लेकिन उसका नुकसान आपको क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अबनी ने जब अपना बिजनेस छोड़ा था, नाउ शी मेड इंचार्ज, हु वॉज द इंचार्ज? अरुषि वॉज इंचार्ज। अरुषि इज जस्ट एन एम्प्लॉय गाइज, वो कल को नो जॉब छोड़ गया, फिर इफ़ शी लीव्स द जॉब, नाउ द business is not in the safe hands. Business is not in the hands of a obedient and a very punctual person or a very hard working person. Business एक unattached बंदे के पास जा रहा है, so that's also not a good sign, right? श्रेय, इंक्रीजिंग ऑफ FIIs एंड DIs आर गुड, लेकिन इसमें मेरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। लेट मी टेल यू इन अ डिफरेंट वे गाइस, इसको मैं एक अलग वे से बताता हूँ आपको। अबनी इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। नाउ दिस टाइम लेट्स मेक अरिजीत सिन्हा एज द प्रमोटर एंड द CEO ऑफ द कंपनी। अरिजीत सिन्हा ही प्रमोटर है, अरिजीत सिन्हा ही डिसीजन मेकर है एंड CEO। अगर कोई फैसला लेना बिजनेस का, अरिजीत के पास जाओ, सर हमें वी नीड अ कार फॉर अ कंपनी, डन। सर वी नीड अ मशीनरी फॉर कंपनी, डन। तो ही इज़ द वन मैन हु इज़ टेकिंग द डिसीजन। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन रिलायंस, बिकॉज मोर देन 50% स्टेक यहाँ पे है, अगर ही विल टेक डिसीजन जस्ट लाइक दैट, विच इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी एंड ही लव्स इन हिज कंपनी फ्रॉम हिज हार्ट गाइज। इसने स्टार्ट की है कंपनी, इसने बनाई है कंपनी। इन केस, इस केस में आते हैं, सो आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ श्रेय मिश्रा। तो श्रेय यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वोटर्स ने 10-15 लोगों को चूज़ किया, दोज 10-15 पीपल कुड बी फ्रॉम FII साइड, कुड बी फ्रॉम DII साइड, राइट, है तो वो एम्प्लॉयज़ ही ना। उन्होंने मिलके, अगर अब फॉर एग्जांपल अब फिर से आते हैं वापस, सर हमें बिज़नेस के लिए गाड़ी चाहिए, ये जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे, ये सब वोटिंग करेंगे, हाँ गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ओके 10% विल से नहीं यस एंड 90% यस, तब जाके अप्रूव होगा। अगर 50-50 फंस गया तो फिर से वोटिंग होगी। सो दे विल नॉट टेक डिसीजंस जस्ट लाइक दैट, दे विल टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी गाइज। जिसके पास कितनी वोटिंग की पावर है उसके हिसाब से डिसीजन आएगा, एंड देन अ डिसीजन वुड बी अप्रूव फॉर अ कंपनी। डोंट यू थिंक थोड़ा डिले है यहाँ पे? लाइक अपना इंडिया वाला सिस्टम, पार्लियामेंट वाला, कोई भी लॉ अप्रूव करना है इन इंडिया, यू हैव टू गेट इट अप्रूव फ्रॉम द पार्लियामेंट। इट्स अ टीडियस प्रोसेस गाइज, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एंड फॉर अ कंपनी, यहाँ पे द प्रोमोटर वॉज द वन पर्सन हु वॉज टेकिंग अ डिसीजन, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में डिसीजन ऐसे आते हैं, फास्ट है। सो व्हाट आई वॉन्ट टू से, this could be a good thing. I'm not saying it's a bad thing, but it is a slow way of doing the business. It can delay the decisions. I hope you got the point, everybody. I hope you got the point. Shrey, I hope you also got the point. Alright, this is what I wanted to say. It's not good or bad. गाइज अभी तक जब तक 7 से 8 क्लासेस नहीं होंगी, जो भी टैक्टिक्स मैं एक एक क्लास में बताऊंगा, दीज टैक्टिक्स नीड टू बी यूज्ड इन अ कंबाइंड मैनर। ये कंबाइंड वे में यूज़ होगा सब कुछ। इट कांट बी यूज एब्सोल्यूटली और सोलली, मीन्स ये जो रूल है ये आप अकेले नहीं यूज़ कर पाओगे। यू हैव टू यूज़ इट इन अ कॉम्बिनेशन विद अदर थिंग्स लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक ratios and all these things we have to combine. All right, now let's see a few examples guys. Adani is the most famous one. Let's see ratios. अब यहाँ पे you will get one more answer guys. यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, you know, so 70% stake is in the hands of Mr. Adani, promoter के हाथ में. It's very good. What do you say guys? It's good, right? It's good. It seems like good to me. But you might have heard recently, you know, there was a report of Hindenburg, right? कि मिस्टर अदानी की कंपनी में बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, यू नो, इंटर कंट्री मूवमेंट हो रही है पैसे की, एंड वाई इट इज़ हैपनिंग. व्हाट एग्जैक्टली हैपन ओवर हियर गाइस? नाउ यू हैव टू सी दिस थिंग. सी, अगर मिस्टर अदानी ने अपने पास 75% शेयर्स रखे हैं, जस्ट इमेजिन, तो मार्केट में कितना बचा? 25%, राइट? मीन्स सप्लाई घट गई शेयर्स की. 50% से 25%, मतलब थोड़े से शेयर है मार्केट में, इतने से, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. हाँ, अब इतने से शेयर्स को, राइट, वो खुद ही अगर ख़रीदने लग पड़े, खरीदना आसान होगा, राइट? मीन्स इट विल बी टू ईजी टू बाय दिस मच अमाउंट ऑफ शेयर. इतने ज़्यादा खरीदने से, इतने से खरीदने को, तो इट्स सो ईजी.
तो व्हाट इफ़ आई से, अगर मैं अपनी सप्लाई को खुद ही खरीदने लग जाऊँ और घटा दूँ मार्केट में, माई शेयर प्राइजेज विल गो अप. डोंट यू थिंक इट इज़ समथिंग मैनिपुलेशन गोइंग ऑन? मीन्स पहले अपने शेयर सारे अपने पास रख लिए, राइट. 75% शेयर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्रमोटर. मार्केट में कितना बचा? 20%, 25%. दैट इज़ सो ईजी टू मैनिपुलेट. तो अपने ही लोगों को बिठा के खरीदवा लिए वो. सो शेयर प्राइजेस, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड नाउ, सप्लाई इज सो लिमिटेड, डिमांड ज़्यादा करवा दी खरीदवा के, शेयर प्राइजेस वेंट अप द रूफ, बहुत ऊपर चले गए. उसके चक्कर में क्या हुआ, दिस 75, अब शेयर प्राइस तो ऊपर गया, अब शेयर प्राइस तो सारे ही ऊपर गए ना, नॉट ओनली 25%, the 75% which he was holding, that too also went up. तो he became the richest man. आपने सुना होगा उस टाइम में, he was the richest man, and because everything went up, the market cap also went up, and इसके अगेंस्ट उन्होंने लोन उठा लिए. So easy guys, I hope you're getting the point why this is so important. So this is also, you have to see these things guys. ये चीज़ें अभी तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टच ही नहीं किए हैं, वी आर जस्ट स्टार्टिंग द गवर्नेंस. सो वेन एवर गाइज दिस इज़ इंक्रीजिंग और दिस इज़ डिक्रीजिंग, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. बीइंग इक्विटी एनालिस्ट, ये पहली लाइन अभी हम बात करें, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट लाइन ओनली. ये FII DIs वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन IPO पार्ट, एंड वाई FII DI इन्वेस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट. बट अभी जस्ट वी आर सीइंग द प्रमोटर पार्ट ओनली गाइज. अगर ये ऐसा चल रहा है, यस, you being equity investors, you should know why this is happening. I hope this is clear now. So increasing and decreasing both should get your attention. First point. Second point, increasing में चलो फिर भी इतना डरने का नहीं है, थोड़ा डर कम लग सकता है. But when it is decreasing, guys, you should invest some more time on research why it is happening. हाँ Aditi, good point. ये I was just about to tell you in the coming topics, but still, जैसे ये डिक्रीज हो रहा है ना गाइज, इफ़ इट इज़ डिक्रीजिंग, इट ऑल्सो मीन्स द ऑनर इज़ रनिंग अवे. इट ऑल्सो मीन्स कि कोई और टेक ओवर ना कर ले. तभी इन दिस गाइज, आपने वो सुना था, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, दैट स्टीव जॉब्स, ही वॉज रिमूव्ड एंड फायर्ड फ्रॉम हिज ओन कंपनी. खुद ही कंपनी स्टार्ट की, खुद ही कंपनी से बाहर निकाल दी. क्यों? बिकॉज ये लेस देन 50% स्टेक होल्डिंग होगी उनके पास. वेरी बैड. दैट्स वाई मिस्टर अंबानी इज स्मार्ट इनफ कि उन्होंने हमेशा अपनी होल्डिंग मोर देन 50% रखी. इट्स ऑलवेज मोर देन 50%, राइट. नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स गाइस. इंडस टावर्स लिमिटेड. So again, this is a company, you will go to investor part, promoter shareholding is decreasing. It was 68%, 68,888, and it became 53 and 50. Again, when you are investing, you should know why this is happening. This is your homework. Now things are very easy. ChatGPT में जाओ, वहाँ पूछो कि why this is happening, why this happened, right? या आप धीरे धीरे we will be discussing when we will be doing the reports, the annual reports. इसमें हमें पता लगेगा. बट अभी आई वॉन्ट यू टू पुट दिस हैबिट ऑफ सीइंग दिस सेक्शन. आई होप यू आर विद मी एवरीबडी. इसके बाद देखते हैं सो इट वॉज 73% इन दिस, राइट, एंड ऑल ऑफ सडन इट बिकेम 0%. इट शुड रियली गेट योर अटेंशन स्ट्रेट अवे. समथिंग हैपेंड ओवर हियर. ना ये आप गूगल करोगे, क्या ये भाग गए, क्या इन्होंने कंपनी किसी के साथ मर्ज कर दी, समथिंग लाइक दैट. सो दिस थिंग यू रियली नीड टू हैव इन योर माइंड व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई प्रमोटर्स आर सो इम्पॉर्टेंट गाइज. यस काशवी सेठी, आई हैव I have one question. When we value a company, all these aspects have to be covered, but how to find which company to look into? Okay. Kashvi, this will take few classes, right, to get to know these things. Almost equity research career class will take some another day guys, right? And you can connect me on LinkedIn if you have any doubts. I do generally reply to people. ऐसा नहीं है, I reply जितना मैं हो सकता है, I reply back. ITC में भी ऐसा ही है. So
सो इन ITC एज वेल गाइज यू विल नॉट फाइंड एनी प्रमोटर, देयर नो promoters ओवर हेयर. ये सारे लोग अपने अपने इसके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल FIIs के पास 42% है, दे हैव देयर ओन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. DIIs हैव दिस मच अमाउंट ऑफ, दे हैव देयर ओन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सभी ने अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए हैं एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग द कंपनी. दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स, राइट. सो बट अब यहाँ पे प्रमोटर नहीं है, इट मीन्स again one more statement I want to make. It's not an absolute statement, but you should keep this thing in mind. जहाँ प्रमोटर नहीं होता है गाइस, वो कंपनी बहुत स्लो ग्रो करती है. मीन्स अगर आपके पास यू हैव 1 लाख रुपी टू इन्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई वुड सुजेस्ट कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जहाँ पे एटलीस्ट प्रमोटर है. वाई? बिकॉज प्रमोटर नहीं होगा, वो 1 लाख रुपी ग्रो करेगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट थोड़ा धीरे ग्रो करेगा, या मनी विल गेट स्टक, आपका पैसा फंस जाएगा. बट इफ़ अ कंपनी इज हैविंग प्रमोटर दैट टू मोर देन 50%, तब आपका पैसा ग्रो करेगा, थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाएगा. अगेन इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट. देयर वुड बी फ्यू कंडीशंस जब ऐसा नहीं होता है. वन मोर थिंग, जब प्रमोटर नहीं होता है देयर आर चांसेस कंपनी बंद हो जाए, इनका चलाने का मन ना हो, कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए. There are few chances as well. When I started my job, guys, my job was in UPL. UPL is a listed company. तो मैंने जो जॉब स्टार्ट की थी, it was in a environment business. It was environment domain business of UPL only. मेरी कंपनी में CEO थे, but that CEO was not the promoter. He was also an employee like me. And I started as graduate engineer trainee, but I worked for at least for 6 months. मैंने उनके साथ EA की तरह काम किया था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू CEO. फॉर 6 months उन्होंने मुझे अपने साथ रखा था. दैट प्रणय वर्क विद मी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज परचेज इन चार्ज, आई वॉज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एज वेल ओवर देयर. सो ही वॉज ऑल्सो एन एम्प्लॉय लाइक मी. जैसे मैं जॉब में जाता था, ही ऑल्सो यूज टू गो टू जॉब. डेफिनेटली माई सैलरी वॉज वेरी मिनिक्यूल एंड हिज सैलरी वॉज ह्यूज, बट यस ही वॉज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. जैसे मुझे निकाला जा सकता था, उन्हें भी निकाला जा सकता था. जैसे मैं नौकरी ढूंढता था नहीं, ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब. बिफोर दैट जॉब ही वॉज मैनेजर इन अ टाटा प्रोजेक्ट. सो ही वॉज ए मैनेजर, फ्रॉम मैनेजर ही बिकेम अ CEO. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, बट दैट वॉज अ ब्रांच ऑफ अ बिग कंपनी. तो वो लोग अगर कल को मेरा CEO जॉब छोड़ देते तो नए CEO आते, तो a new CEO, new employee, just like a new employee. So I hope you got the point, everybody. All right. Okay, now coming to we did SBI. I wanted to show you SBI. So if we see for SBI guys, and we see the promoter, so in SBI the promoter is प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मतलब गवर्नमेंट ने अपने पैसे लगाए हैं SBI में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पैसे हैं. सो दे हैव द स्टेक होल्डिंग गाइज. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन SBI एंड इंडियन रेलवेज. क्या डिफरेंस है मुझे बताओगे? चलो इंडियन रेलवेज हटा दो, पोस्ट ऑफिस या इंडियन आर्मी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SBI एंड इंडियन आर्मी गाइज? व्हाट इज द डिफरेंस गाइज? As a company, I'm saying company structure, or I would say post office of India. Indian Army is the government. Indian Army government का ही part है, right? लेकिन SBI is an organization जहाँ government of India की investments हैं more than 75%. तो कल क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना ये स्टेक बेच सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली दे कैन, जस्ट लाइक नॉर्मल शेयर होल्डिंग. प्रमोटर जब यहाँ से निकल सकता है तो निकल सकता है. इट्स ऑलवेज मोर देन 50%. वाई? इंटेंशनली, बिकॉज दे वॉन्ट इन मेजर स्टेक होल्डिंग. यहाँ पे अगर FII, हर्ष आपका क्वेश्चन, अगर यहाँ पे FII और DII बढ़ गए तो ये तो SBI को अपने हिसाब से चला लेंगे. तो आम जनता, गरीब जनता, फार्मर्स, व्हाट वुड हैपन विद देम? तो दैट्स व्हाई दे हैव टेकन दिस स्टेक ओवर हियर, राइट? एंड इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन. भी आपने सुना होगा, नेशनलाइजेशन जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को टेक ओवर कर ले, गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर एंड दे टेक इट ओवर, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी. ओके, so this was for Indian Railways guys.
सो प्रोमोटर ऑफ इंडिया, अगेन प्रोमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इंडियन रेलवेज. वाई इट इज़ लाइक दैट? बिकॉज गाइज थोड़े टाइम पहले ही इन्होंने थोड़ा सा इसके शेयर्स पब्लिक के लिए इशू किए हैं, थोड़ा टाइम पहले ही ये स्टार्ट हुआ है. आई होप गॉट द पॉइंट एवरीबडी. So there are companies where stakeholding is very high, like in TCS. See, in TCS, promoters stakeholding is 70%. So there are companies जहाँ पे stakeholding 70% है, 50% है, less than 50% है, या है ही नहीं. अगर नहीं भी है, it doesn't mean it's bad. I'm repeating myself again. It's not. It's bad. अगर स्टेक होल्डिंग है ही नहीं, अगर प्रमोटर है ही नहीं, guys, board of director also do a good job. ICICI Bank is doing good. There are people who are executing the company in a good way, but the only thing is that it is delayed in decision making. थोड़ा growth slow हो जाती है. That's it. That is the only difference. It will also grow. But being equity investors, we need to see ना, हमें तो देखना है कि यार हमारे पैसे कहाँ जल्दी ग्रो करेंगे. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि यहाँ ग्रो नहीं करेंगे, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है. इट्स जस्ट लाइक दैट थोड़ा हायरार्की अलग है ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में. आई होप एवरीबडी इज विद मी. ऑल राइट एवरीबडी. नाउ गाइज, वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. आई वॉन्ट यू टू फोकस ओवर हियर एवरीबडी. अभी तक कोई डाउट? एनी डाउट स्टिल नाउ? जब भी कंपनी पब्लिक होती है, व्हेनेवर कंपनी गोज टू पब्लिक, राइट, सबसे पहले कंपनी थी प्राइवेट, इट बिकेम पब्लिक अनलिस्टेड, देन इट बिकेम पब्लिक लिस्टेड. तब ये पूरे इंडिया से पैसे ले सकते हैं. इसको जाने के लिए इसको एक रेड हेरिंग प्रस्पेक्टस बनाना पड़ता है, विच इज़ अ ट्रेलर विच गोज़ टू पब्लिक कि देखो हम ये काम करने वाले हैं इन फ्यूचर, एंड दिस इज़ हाउ you should invest and this is why you should invest in our company. But over here, one very important thing that comes into play, जब कंपनी पैसा उठाती है तब वो फेस वैल्यू पे उठाती है. नॉट ऑलवेज, बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 60,000 करोड़ रुपया उठाना है, इफ़ आई हैव टू रेज 60,000 करोड़ रुपी, राइट, तो मुझे शेयर्स तो इशू करने पड़ेंगे ना. आई हैव टू इशू सम शेयर्स, राइट, एंड दैट शेयर शुड बी मल्टीपल ऑफ समथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल, या तो मैं लेट मी गिव यू इन अ डिफरेंट वे. जैसे फॉर एग्जांपल, आई नीड मनी, मुझे पैसा चाहिए. तो अगर मैं आरुषि को बोलूँ, आरुषि कैन यू गिव मी 100 करोड़ रुपी, आई नो शी वुड से अरे सर इतना पैसा तो कहाँ. इट विल बी सो डिफिकल्ट टू आस्क 100 करोड़ रुपी फ्रॉम वन पर्सन, राइट. Now, if I ask the same question from Sunny this time, so Sunny, can you give me 50 crore rupee? Again, it's a big number. Sunny के मुंह से खाना निकल जाएगा, अरे सर इतना तो कहाँ दे पाएंगे, no? But now I play smartly. I say all of you give me one rupee. That would be too easy for you. और अगर एक रुपया मैं पूरे इंडिया से ही मांग लूँ फिर, that would be amazing. इंडिया से एक रुपया मांग लिया, it will be easy for all of you to give me, right, firstly. और मेरी जेब में बैठे बैठे 150 करोड़ रुपया, बिकॉज वी आर 150 करोड़ पीपल, मोर देन वन डेट, राइट. बैठे बैठे किसी को मुश्किल भी नहीं आएगी. ईजी बिजनेस गाइस, पैसे उठाओ बिजनेस कर लो. दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू इन वेरी ईजी टर्म्स. आई एम सेइंग ये उनके लिए है समझना. आई एम नॉट गोइंग इन टू फॉर्मूलाज राइट नाउ. फेस वैल्यू वो हो रहता है बेसिकली जिसमें हमने पैसा उठाया है, इसी में डिविडेंड दिया जाता है. इसी फेस वैल्यू में, याद रखना, स्टार्ट बिजनेस का और पैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसी के ऊपर होती है. तो बिज़नेस का पैसा जब उठाया तो फेस वैल्यू से उठाया बेसिकली, राइट. डिविडेंड मैं दूंगा किसी को, फेस वैल्यू के ऊपर दूंगा. इसको हम बाद में करेंगे वैसे डिविडेंड्स वगैरह को. जस्ट अभी ये याद रख लो कि फेस वैल्यू इज समथिंग व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस. जनरली इट इज़ टेकन एज 1, इट इज़ टेकन एज 10. इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. ज़रूरी नहीं एक के मल्टीपल में पैसा उठाते हैं, ज़रूरी नहीं फेस वैल्यू के मल्टीपल में पैसा उठाते हैं. दीज आर द आस्किंग प्राइजेस. बट जब बिड होती है तो बिड लोग ज़्यादा भी लगा देते हैं, तो ज़्यादा पैसा भी मिल जाता है. सो इट्स नॉट लाइक डैट कि मैंने 500 करोड़ रुपए चाहिए था, 500 ही मिलेगा. थोड़ा ज़्यादा भी आप, इट कैन हैपन, राइट. बिड्स समटाइम्स गो अपवर्ड एज वेल. तो व्हेन एवर अ कंपनी स्टार्ट्स, फेस वैल्यू जनरली टेकन एज इट्स अ स्टैंडर्ड, इट इज़ टेकन एज 10, राइट. फिर वो घटते घटते कभी 1 भी आ जाती है व्हेन यू गिव बोनसेज एंड व्हेन यू गिव अदर थिंग्स लाइक दैट. We will be discussing that. Just अभी ये याद रखो, फेस वैल्यू is taken as 10 when a company starts. धीरे धीरे when a company starts making profit, and the company starts
रेजिंग प्रॉफिट्स को रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलते हैं ईजी टर्म्स. जैसे जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के बढ़ते हैं, सरप्लस मतलब कुछ एक्स्ट्रा. जस्ट रिमेंबर द इंग्लिश टर्म राइट नाउ. सरप्लस या रिजर्व्स एंड सरप्लस जब बढ़ते हैं, जब आपके घर में रिजर्व खाना हो, रिजर्व सरप्लस खाना हो, तो इट्स अ गुड थिंग. सरप्लस एक्स्ट्रा पड़ा है तो इट बिकम्स बुक वैल्यू. प्रॉफिट ऐड ऑन होता जाता है. टेक्स टाइम, इट्स नॉट वन टाइम इवेंट. यहाँ से स्टार्ट की कंपनी, फिर बुक वैल्यू में हमारा बढ़ता गया. इट द सर्कल कीप्स ऑन ग्रोइंग. जैसे जैसे कंपनी को टाइम इट टेक्स टाइम एंड इट कीप्स ग्रोइंग बेसिकली. मार्केट वैल्यू समथिंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. मार्केट वैल्यू चलती है सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट्स में एंड डिमांड एंड सप्लाई. इट इज़ नॉट रियली रिलेटेड टू विद इन कंपनी वट इज़ हैपनिंग. बट या डेफिनेटली थोड़ा बहुत है, बट generally it is the market sentiment of the people, how they think about these things. I hope this is clear everybody with me till now. All right, don't worry, we will be just seeing few examples for this. I don't want to confuse you. See guys, before I give you an example, let's see. TCS here, ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू. सिर्फ अभी देख लो, अभी डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं इनके सी. इट मीन्स धीरे धीरे बुक वैल्यू भी बढ़नी चाहिए. रिजर्व मतलब थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं. वैसे प्रॉफिट्स अलग यूज़ होते हैं, बट हम रिजर्व्स को प्रॉफिट की तरह यूज़ कर सकते हैं अभी, फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. फेस वैल्यू ऑलवेज फिक्स 10. बुक वैल्यू, बुक मीन्स बुक, अकाउंटिंग बुक्स. अकाउंटिंग बुक्स के नंबर कब बढ़ते हैं? व्हेन वी अर्न प्रॉफिट्स, व्हेन वी इंक्रीज द एसेट्स. So book value increases and market value is the market demand and supply. Now you need to understand this thing guys. This is very important. Listen to this carefully. Practical से देखते हैं. Let's see Adani Enterprise. This is market value 2000 rupee. I want everybody focus over here. Current price and market value same चीज़ है. Book value 400 रुपये. ट्रिगर शुड स्ट्रेट अवे कम इन योर माइंड. सी वैसे तो वैल्यूएशन के बहुत तरीके हैं गाइस, द मल्टीपल वेज. वी हैव जस्ट स्टार्टेड हाउ अ कंपनी गेट्स इनटू पब्लिक, एंड उसमें हम क्या देख सकते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन सी, डू यू थिंक इट इज़ ओवर वैल्यूड? मुझे लगा ऐसा. वाई? द रियल वैल्यू शुड बी नियर 400, इसके आसपास होनी चाहिए थी. बिकॉज एसेट्स सब देख के बुक वैल्यू के हिसाब से इतना बनना चाहिए था लगभग. But the market value is 2000. It's too high. I hope you're getting the point, everybody. So the thing is that it is not the, as I told you, it is not the absolute way, but this is the way. जब company start होती है, we should keep this in our mind. We will be seeing after 8 or 9 classes. उसके बाद there will be so many things that you will be able to use, right? Now the same thing I would like to tell you, I would like to show you over here would be, let's see. वोडाफोन. सो वोडाफोन में बुक वैल्यू इज -9. -9 कुड बी, यार कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा शायद. एज आई टोल्ड यू, बुक वैल्यू मीन्स रियल वैल्यू. कंपनी में क्या एसेट्स हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस. नो रिजर्व्स, इट मीन्स स्ट्रेट देख के पता लगा सकते हैं हम लोग, स्ट्रेट, राइट. करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 6 मीन्स मुझे तो नेगेटिव देख के नेगेटिविटी आ गई. लाइक दैट यू कैन सी, मीन्स स्ट्रेट नो. आपके माइंड में अगेन अ ट्रिगर शुड कम, वाई दिस इज हैपनिंग. अभी तक हमने कुछ और नहीं देखा है. वी हैव जस्ट सीन दिस. सो बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब यहाँ पे, सो सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग यार. फेस वैल्यू का है, हाँ, फेस वैल्यू इज 10. फेस वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहती है ऑलमोस्ट. इट कुड बी 10, इट कुड बी 5, इट कुड बी 1. तो इसको फोकस में ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है. टिल नाउ यू डोंट नीड दिस थिंग. दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. व्हेन अ कंपनी स्टार्ट, इट स्टार्ट्स एट 10 रुपी. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट. इससे पहले हमने कौन सा देखा था? अदानी, इट्स फेस वैल्यू इज़ 1. इससे पहले कौन सा था? TCS फेस वैल्यू इज़ 1. सो एज आई टोल्ड यू, इट कुड बी 10, इट कुड बी 5, इट कुड बी 1. ये वेरी क्यों करती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्प्लिट्स दैट टेक्स प्लेस. यू नो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी विल बी कमिंग इन डिस्कसिंग इन अ डिफरेंट क्लास. नाउ एनी डाउट्स? मीन्स बट नॉट जनरेटिंग. Yeah, it could be like that. Reliance
कम्युनिकेशन देखते हैं, रिलायंस. So over here, oh my god, it is book value minus 331. The difference is very, very, so it means 47,000 crore is a debt. Guys, debt is a very important criteria. दो तीन criteria बहुत important है. That is one of the criteria is debt. 47,000 crore is a debt in the company, right? And see the numbers over here. So if I repeat myself again over here, we will see few more companies. सबसे पहले देखते हैं जो हमारा करेंसी का नोट है उसमें फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू बराबर होती है. मीन्स फॉर एग्जांपल यू हैव 500 रुपी. अभी यार आई डोंट हैव द कैश राइट नाउ. इफ़ यू टेक 500 रुपी नोट इन योर हैंड, वो 500 रुपये की फेस वैल्यू 500 ही है, बुक वैल्यू भी 500 ही है, मार्केट वैल्यू में जब मार्केट जाओ तो 500 की ही चीज़ आप ले पाओगे. तो फॉर करेंसी फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर ऑल सेम, बट इट्स नॉट फॉर द स्टॉक्स. स्टॉक्स में फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू विल डिफर इन अ बिग वे. फेस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ द शेयर कैपिटल, जो आपने पैसा उठाया है शेयर से, बाय नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स. याद रखना है रख लो, बट वैसे याद रखना फेस वैल्यू में जब आप इशू करते हो उससे याद रहेगा आपको. बुक वैल्यू एज आई टोल्ड यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस. जब आप थोड़ा प्रॉफिट कमाना शुरू करते हो, रिजर्व्स आपके बढ़ते हैं, यू आर अर्निंग समथिंग, यू नो, फेस वैल्यू पे ही वो एड ऑन होता है. सो अगर मैं आपको ऐसी स्टेटमेंट दूँ कि सर जब कंपनी स्टार्ट होती है, व्हेन अ कंपनी स्टार्ट्स वी कैन से फेस वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू. यस यू कैन. जब कंपनी शुरू होती है तो इट कुड बी लाइक दिस, फेस वैल्यू इज ऑल्सो 10, बुक वैल्यू इज 10, बिकॉज अभी कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है, अभी आप जस्ट स्टार्टेड. पर जैसे जैसे एवरी ईयर हमने थोड़ा प्रॉफिट कमाया, थोड़े रिजर्व्स बढ़े, सरप्लस बढ़े, तो फेस वैल्यू इट वॉज 10 इनिशियली, बुक वैल्यू हमारी बढ़ते बढ़ते 10 से 20, 30, 40 एंड लाइक दैट इट विल कीप इंक्रीजिंग एवरी ईयर. सो इंक्रीजिंग इन बुक वैल्यू इज अ गुड साइन, राइट? Really the company is growing, really you can see like that. But when you know they give dividends and all that, वो dividends सारे के सारे फेस वैल्यू पे दिए जाते हैं. तो विद टाइम फेस वैल्यू कैन बिकम 10 से घट के फिर आ सकती है आपकी 5 and 5 से कम, लाइक दैट इट कुड बी 1 एज वेल. नाउ यहाँ पे फ्यू टर्म्स हैं विच आई वॉन्ट टू टेल यू. yes assets. आरुषि बहुत, द क्वेश्चन इज़ वेरी लॉन्ग, इसको थोड़ा इजी करो प्लीज़. नाउ इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ बिगर देन बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बड़ी है, फाइन, बिकॉज इसका अच्छा फर्क, इट्स अ गुड इंप्रेशन. मीन्स आई एम नॉट सेइंग अदानी इज़ अ बैड कंपनी, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट? लेट मी. सो अदानी में इट वॉज वेरी हाई, द मार्केट वैल्यू वॉज वेरी हाई. इट मीन्स लोगों का सेंटीमेंट अच्छा है, और आई वुड से डिमांड इज़ हाई. If not the sentiment, I would say demand is high. So book value से बहुत ज़्यादा है, it's a good sign. Good. आप लोग थोड़ा वेट करके इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा इसको नीचे आने दो तब इन्वेस्ट करो इक्विटी रिसर्च के हिसाब से. बट जनरली आई वुड से इट्स अ गुड साइन. बट इफ़ द मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, नॉट ए गुड साइन. जैसे रिलायंस में था, सी मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम हो जाए तब तो इट इज़ अ वेरी बैड साइन. सी यहाँ पे बुक वैल्यू तो नेगेटिव में आ गई है, और ये और नहीं, अगर ये इससे भी कम हो जाए देन इट्स अ कंप्लीट नो. वी विल बी सीइंग फ्यू मोर एग्जांपल्स, राइट? देन कम्स फेस वैल्यू इज बिगर देन ऑल ऑफ देम, तो वो पेनी स्टॉक होता है. पेनी स्टॉक्स में मैनी पीपल फाइंड, यू नो सर 1 रुपये का कोई स्टॉक बता दो, 50 पैसे का कोई स्टॉक बता दो. सी दीज आर पेनी स्टॉक्स जहाँ पे मार्केट वैल्यू जस्ट नियर टू फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपये का स्टॉक, 10 रुपये की मार्केट वैल्यू. बट दीज स्टॉक्स ना, द मनी समटाइम्स गेट स्टक फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लोग उसमें पैसा तो लगाते हैं पेनी स्टॉक्स में, बट वहाँ पे पैसे ना बहुत टाइम तक दे गेट स्टक, दे डोंट मूव. दीज शेयर्स, इन शेयर्स में ना वॉलेटिलिटी नहीं होती. तो आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख के 1 लाख ही रहेगा 1 साल तक, 2 साल तक. व्हाट इज़ द पर्पस? उतना में तो आप कहीं और पैसा बना के निकल लेते. आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर दिस गाइज. ओके, हमने देख लिया था ONGC का, देखते हैं. ONGC is a government company, as a PSU है. Current value, market value is 233 रुपी. Guys, अब मैं चाहूँगा, I would like you to think and answer me, right? This is the current value. Current value is 233 and this is book value. Now what do you think? यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा with the passage of time. What do you say? Face value 5 है यहाँ पे,
सी दीज आर जस्ट नियर टू ईच अदर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दूसरे के पास हैं. यहाँ पे आप डेट देखो, डेट इज़ वेरी वेरी हाई. तो दीज कंपनीज दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में बहुत ज़्यादा डेट रहता है. डेट मीन्स लोन बहुत ज़्यादा, इनको गवर्नमेंट ज़्यादा लोन ईजिली दे देती है. इवन डैट थिंग रियली हेल्प दीज कंपनीज टू ग्रो. बट जर्नली द थिंग इज़ डैट दिस कंपनी ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाती. सी यहाँ पे बुक वैल्यू ज़्यादा है 143 एंड द मार्केट वैल्यू इज़ 121. डोंट यू थिंक गाइज इसका मतलब ये है कि मार्केट में पीपल हैव बैड सेंटिमेंट फॉर दिस, डिमांड इज़ लेस फॉर दिस. सी बुक वैल्यू इज़ हाई, जस्ट इमेजिन गाइज, एंड मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन द बुक वैल्यू. सो गाइज दीज आर फ्यू थिंग्स. ये तब की बात है जब अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, कि जब कंपनी इशू हो रही है, एंड वी शुड सी द फेस वैल्यू, वी शुड सी द बुक वैल्यू, एंड देन the market value. Even this thing can help you to analyze some few good companies, right? See, wine business is beverage business, वो alcohol business अलग होता है. Wine could be different, Arushi. Slow growth, long duration company. See guys, I'm not here to comment कि ग्रोथ कैसी रहेगी. वट आई वॉन्टेड टू से, आपके पास 1 लाख रुपया है, एक साल में आप उसको 2 लाख भी बना सकते हो, एक साल में एक का एक भी रहने दे सकते हो. सो यू आर नॉट हेयर टू डू द चैरिटी गाइज कि हम चलो इसी में लगा देते हैं, एक साल बाद बढ़ जाए नहीं बढ़े. बट आपके पैसे इट गेट स्टक, पैसे फंस जाते हैं. एंड 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा तो इट विल बी हार्ड. वी नीड टू फाइंड द कंपनीज. इक्विटी रिसर्च का मतलब ये है कि वी नीड टू फाइंड कंपनीज हु ग्रो वेरी फास्ट, जो जल्दी जल्दी ग्रो करें. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, इसको देखने की आदत डाल लो अभी से, बिकॉज इन नेक्स्ट फ्यू क्लासेज वी विल बी यूजिंग द मार्केट कैप एज वेल. आपको मार्केट कैप याद ही हो जानी चाहिए, कुछ अच्छी अच्छी कंपनी की तो याद रख के करो, बिकॉज इसको देख के आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि अरे यार लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल ओवर हेयर. जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइटन की मार्केट कैप देखो जरा. एवरीबडी जस्ट थिंक, आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक. मार्केट कैप ऑफ टाइटन इज हाउ मच? 3 लाख करोड़. ठीक है, फाइन. मार्केट कैप ऑफ जोमेटो व इटर्नल, मार्केट कैप ऑफ जोमेटो इज अगेन नियर टू 3 लाख. चलो दोनों का 3-3 लाख रख लो. गाइज टेल मी, जस्ट विदाउट एनी रिसर्च, सिर्फ मार्केट कैप को देख के, डू यू थिंक this market cap 3 lakh crore of Zomato should be equal to the market cap of Titan? Just think. Titan is not something कि घड़ी बनाने वाली कंपनी. Don't think in that way. Guys, just एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ. Zomato again. Zomato, right? If we go to investors, guys, can you see a promoter over here in Zomato? Please see, everybody, I want you to see. Promoter है यहाँ पे. So what does it mean? If there is no promoter in Zomato, right? So what does it mean? I'm not commenting anything right now. You are very smart, right? Now see what I wanted to say over here, guys. सिर्फ आप मार्केट कैप को देख के ये पता लगा सकते हो यार पैसा तो बहुत है, मतलब कंपनी इज़ डूइंग ह्यूज, बट रिस्क ऑफ जोमेटो इज़ मच 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 हायर देन द रिस्क इन टाइटन. तो मैं तो इसी को देख के ये बोल दूंगा कि अरे यार इट इज़ सो मच ओवर वैल्यूड. टाइटन तो कुछ ना भी करे कुछ साल, तब भी वो अपने एम्प्लॉयज़ को फोकट में खाना खिला सकते हैं. डील्स इन गोल्ड बेसिकली गाइज. गेटिंग इतना एसेट है उनके पास, सो देयर इज़ वेरी लेस रिस्क इन टाइटन. बट जस्ट इमेजिन टाइटन डजंट डिजर्व 3 लाख करोड़ वैल्यू. सो सी दिस इज समथिंग, दीज आर एस्पेक्ट्स you can get to see the company just by seeing just one number, guys. So the thing is that मार्केट कैप आपको याद रखनी चाहिए. रिलायंस, TCS, इनकी तो याद रख लो, सो दैट यू कैन स्ट्रेट अवे कंपेयर अ बैड कंपनी विद दैट कि अच्छा टाइटन की इतनी है, जोमेटो की भी इतनी है, हाउ कम जोमेटो की इतनी ज़्यादा मार्केट कैप है? इट डजंट डिजर्व दैट थिंग.
एंड इफ़ इट डजंट डिजर्व दैट थिंग, तो आपके माइंड में घंटी आ जाएगी, अरे यार इसको तो ऐसे कर सकते हैं, मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। और अगली चीज़ जोमेटो की अगर आप नीचे स्क्रॉल करते तो यू वुड हैव सीन द प्रमोटर स्टेक होल्डिंग, दिस इज नो प्रमोटर इन ओवर हियर। तो इट मीन्स कल को अगर जोमेटो बंद हो गया तो उन्होंने अपना पहले पैसे प्रमोटरशिप के मतलब मीन्स दे हैव ऑलरेडी सोल्ड देयर शेयर्स। सो द थिंग इज दैट गाइज, वी नीड बीइंग इक्विटी रिसर्च, वी नीड टू सी Somi, we will be discussing this again. It's just I got across कि I should tell you that आपको मार्केट कैप याद कर लेनी है कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज की फॉर बेटर कंपेरिजन्स। फॉर इन नेक्स्ट फ्यू क्लासेज वी विल बी यूजिंग दिस थिंग अगेन, ऑलराइट। If market value is too higher than the book value, see again प्रभु, nothing good nothing bad, हम कुछ सही गलत नहीं कर रहे हैं। इक्विटी रिसर्च में एवरीथिंग वुड बी शेड्स ऑफ ग्रे, कम बुरा ज़्यादा बुरा, कम अच्छा ज़्यादा अच्छा। पॉलिटिशियंस आर नॉट बैड और गुड गाइज, पॉलिटिशियंस आर लेस बैड मोर बैड, लेस गुड मोर गुड, इट्स शेड्स ऑफ ग्रे। अच्छा बुरा नहीं, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ब्लैक एंड वाइट गुड एंड बैड वहाँ नहीं है, अच्छा बुरा ज़्यादा बुरा, यू हैव टू एनालाइज डैट। तो यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कौन किससे थोड़ा सा कम अच्छा है, कौन किससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, दिस इज समथिंग वी आर एनालाइजिंग बीइंग इन इक्विटी, राइट, and bad and ugly. Now guys, one more thing over here that we will be discussing, and हम लोग जब सेक्टर एनालिसिस करेंगे, बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनी सेक्टर, राइट, जैसे आपने किसी का IPO देखा, IPO इज कमिंग एंड वी इन्वेस्ट इन दैट IPO, तो हमें कुछ चीज़ें रखनी चाहिए माइंड में। जस्ट सी द ग्रोथ रेट ऑफ दैट सेक्टर वर्ल्ड वाइड। आई वॉन्ट यू टू इमीडिएटली गूगल इट आउट, what is the growth rate of ऑटोमोबाइल सेक्टर वर्ल्ड वाइड, पिछले एक साल में कितना ग्रोथ रेट रहा है, आप ज़रा गूगल करके देख लो। तो जर्नली द ग्रोथ रेट स्टेड बिटवीन 5 to 10%, जर्नली इतना, और कई जगह तो उससे भी कम, मतलब इट्स समथिंग लाइक 2% 5% लाइक दैट। ग्रोथ रेट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर वर्ल्ड वाइड। ग्रोथ रेट इन इंडिया अगेन थोड़ा सा ज़्यादा हमारा इसलिए है बिकॉज वी आर डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन का कंसेप्ट वी विल बी डिस्कस समथिंग समवेयर एल्स, बट जस्ट रिमेंबर इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा था, बट ओवरऑल ग्रोथ रेट वाज ऑलवेज लेस, इंडिया में भी कम ही था। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जब दुनिया में ही सेक्टर डाउन में है, इंडिया में ही पूरा सेक्टर डाउन में है, हाउ कम द कंपनी विच यू हैव इन्वेस्टेड इन वो भी डाउन नहीं जाएगी, वो ऐसा क्या कर रही है? And if the company is outbeating them, then that company is definitely a good company. Let me repeat myself again. वैसे तो जब भी आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने टाटा मोटर्स में पैसे लगाने हैं, आप पहले ये देखो वो सेक्टर पूरे वर्ल्ड में कैसा चल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की वर्ल्ड में कितनी ग्रोथ है, 2.5%, 3%, 5% फॉर एग्जाम्पल। जब वो सेक्टर 5% में ग्रो कर रहा है, फिर इंडिया में देखो, इंडिया में वो सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, अगेन 5 to 6%, ठीक। तो आपको क्या लगता है, आप एक कंपनी खरीद लोगे, वो कंपनी 50% में ग्रो कर जाएगी या 20% में, आपका पैसा 50-20% में ग्रो कर जाएगा। जब वर्ल्ड वाइड यो कंपनी मतलब सेक्टर ही, दैट सेक्टर इज़ नॉट ग्रोइंग इन इंडिया, दैट सेक्टर इज़ नॉट ग्रोइंग, हाउ कम दैट वन कंपनी विच यू हैव चोजन विल ग्रो? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जब सारी की सारी क्लास ही फेल हो रही है किसी चीज़ में, राइट, सारा स्कूल ही फेल हो गया, उसकी क्लासेस भी फेल होगी, शुड यू टेक एडमिशन इन दैट स्कूल? हाँ, अगर वहाँ पे एक क्लास है जिसने 90% मार्क्स ले लिए, देन डेफिनेटली डैट इज़ ए गुड क्लास। ये एक क्राइटेरिया रहता है। अगर कोई कंपनी इन सारे पैरामीटर्स को आउट ब्रेक कर जाए, दैट इज़ ए गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। हाँ, ऐसा हो सकता है उस कंपनी ने कहीं एक्सपोर्ट कर दिया हो, ऐसा हो सकता है वो अपनी कंट्री में बेच ही ना रहे हो, ऐसा हो सकता है कि दे आर एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट, दैट कुड ऑल्सो बी एन इशू, राइट। सी पेनी स्टॉक में अब नहीं, आई वॉन्ट सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स बिकॉज दे आर वेरी रेयर चांसेस आउट ऑफ 100%, 100 कंपनीज, 1 or 2 कंपनीज, दे नॉट आउट परफॉर्म, दे जस्ट इंक्रीज और दे जस्ट ग्रो बाय 5 or 6% or 10% एंड पीपल बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज सस्ते में ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं। बट इन मेजोरिटी केसेज अपनी इट गेट स्टक, योर मनी गेट स्टक। वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा 1 साल 2 साल, उस 1-2 साल में आप कहीं और पैसा लगा के कमा सकते थे। Are you getting the point? So the thing is that
you need to find the companies who are outbeating the sector of India, that sector in India and worldwide. अगर सबका सेम ही चल रहा है, then you should stay away from that sector for a while, जब तक इंटरनेशनली थोड़ी ग्रोथ ना आ जाए, जब तक सिचुएशन सारी की सारी ठीक ना हो जाए. गाइज, आई होप एवरीबडी इज विद मी टिल नाउ. It's like 2 out of 10 companies can let you win. See, we will be discussing that. ये जो questions हैं आपकी कुछ classes के बाद guys खुद ख़त्म हो जाएंगे. Why? Because we will be following few criterias to analyze and shortlist companies. उस criteria में अगर आपकी company कोई बैठती है तो even if that is penny company, you should invest. हम लोग कुछ ऐसे पैरामीटर्स कर लेंगे, अगर वो टिक 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 आता है तो अपनी यू कैन इन्वेस्ट. लेकिन ब्लाइंडली पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट एडवाइजेबल. हाँ, आप अपनी तरफ से रिसर्च करो, उसके सारे पैरामीटर्स अगर ठीक बैठ रहे हैं, या यू कैन गो अहेड. तो आपने उसको जल्दी ढूंढ लिया बाकियों से. इट्स लाइक दैट. यू फाउंड अ गुड कंपनी बिफोर अदर्स फाउंड दैट, राइट? इट्स लाइक दैट. इट्स हाउ इट वर्क्स. ऑलराइट, नाउ लेट मी रिपीट माई सेल्फ. हम लोग जितनी भी रिसर्च कर लें, लाइक फंडामेंटल एनालिसिस, रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन गोइंग फॉर द टेक्निकल्स, देन गोइंग फॉर आई वुड से फाइनेंशियल मॉडलिंग, everything will fail if the company governance is not good. Now, what is the reason and why I told this? I'll give you few examples now, few case studies. कुछ case studies आपको खुद घर में पढ़नी है, कुछ I will be letting you know. My homework for the day would be, I am giving outline of these case studies. I want you to dig deep inside these case studies and just imagine yourself in the position of investor. Just imagine that this will be your homework. So we will be discussing few case studies. Just imagine guys, as a beginner you should invest in mutual funds. हाँ, good आरुषि, ETFs are good. हमारी अभी एक म्यूचुअल फंड की क्लासेस हैं, 2 बची हुई. उसमें हमने डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट वही करना था, एंड ETF के क्लासेस कुछ बची थी. वी विल डूइंग दैट आफ्टर इक्विटी. नाउ व्हाट हैपेंड बेसिकली, जस्ट इमेजिन गाइज, यू वर इन्वेस्टर इन Reebok or you were a private investor in Reebok. Just imagine this. Reebok is a private company, तो इतना हल्ला इसका पड़ा नहीं, पहली बात. Just like Byju's was a private company. अगर Byju's, if would have been Byju's पब्लिक कंपनी, तब तो बहुत बुरी हालत होती. तब तो लोग सड़कों में होते, तब तो मिस्टर Byju would have been somewhere else. But since it was a private company, it didn't become a big issue because कुछ ही लोगों ने इन्वेस्ट किया था. That was again FIIs and DIIs, तो गवर्नमेंट didn't get involved that much कि चलो यार अमीरों के पैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, इट्स फाइन. Reebok में क्या हुआ था, MD and CEO of Reebok, right? So what they did basically, they diverted 147 crore worth shoes disappear. इन्होंने क्या किया, they made fake distributors जो exist करते ही नहीं थे. They were just on the papers, not physically. Anywhere they were not existing anywhere. These fake distributors further made fake franchises. They gave fake franchises to people which were just on the paper. And then they ordered shoes. ये जो शूज़ आते थे फिर Reebok के, they used to divert those shoes into a warehouse जो कहीं और located था और जो इनका खुद का था. And then they used to sell these shoes into open market. And by doing this, they made 147 crore rupee just like that. जस्ट इमेजिन, अगर कोई इंसान अगर कंपनी में इलीगल एक्टिविटी करने में ही आ गया, इफ़ ही प्लान्स टू डू समथिंग इलीगल, नोबडी कैन कैच दैट. बड़े से बड़े ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स को नहीं पकड़ पाते गाइस. इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, सो मैनी लेयरिंग्स आर देयर. इतनी लेयरिंग्स बना दी होती हैं, जो बेचारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं, CAs हैं, दे आर ह्यूमन बींग्स गाइस. ऑडिट में पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड वंस व्हेन इट इज़ कॉट, इट्स टू लेट. वो सारा का सारा जो स्टॉक मार्केट है या वो जो आपका स्टॉक है या वो कंपनी है, द शेयर प्राइस फॉल्स so abruptly, you don't even get chance to get out of it, and your money get lost. Even if you have done all the research, even if you have done all the stages of you had followed all the stages of research, कोई फ़ायदा नहीं. अगर प्रमोटर अपने आप को करप्ट करने में ही आ गया तो कंपनी लेके डूबते हैं फिर वो.
आई होप यू आर विद मी. व्हाट आई वांटेड टू से, यहाँ पे व्हेन द इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर ये सब नहीं होता, अगर 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 अपने आप को, if the promoter they plan to do some kind of fraud, your money is doomed, guys. उसको आप, you can't prevent that thing. So this is something happened in Reebok. It is your homework. I want you to see what exactly happened. Now Bharat Pay, very very famous. It was a good company. Now how the things were working out, now whatever I'm saying with all respect, and jo reports mein tha, I'm just saying that I'm not quoting anybody, or I'm not defaming anybody. Two people, Mr. Ashneer and the family members, his wife was the chief control officer, right? CCO. She was a designer, not a CA, right? Not from the finance background. तो चीफ कंट्रोल ऑफिसर्स को थोड़ा ऑडिट का काम रहता है, फाइनेंशियल ऑडिट्स. So how come a designer background person came into this chair? Again, red flag. Secondly, guys, what exactly happened over here? When you are in a company में क्या होता है, या तो वो लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं, दे हायर अ कंसल्टेंट एंड दैट कंसल्टेंट हायर्स एम्प्लॉय फॉर द कंपनी. ठीक, जैसे आपके HRs होते हैं, HR कंसल्टेंट, कई कंपनीज डायरेक्टली हायर करती है, कई कंसल्टेंसी से हायर करते हैं. तो कंसल्टेंसी वालों को पैसे देने पड़ते हैं, दे हैव टू पे द मनी. So what exactly happened over here? They hired 90% of the staff, जो उन्होंने खुद हायर किया था. इट वॉज इंटरनल, बट उन्होंने रिपोर्ट्स में शो किया दैट इट इज़ हायर्ड बाय कंसल्टेंसी, एंड सिर्फ 10% हमने खुद हायर किया. एंड दे रेज्ड फेक बिल्स अगेंस्ट डैट, एंड उसके अगेंस्ट उन्होंने पैसा, वो जो लोग जो हायर हुए, दे वर ऑल्सो देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और देयर ओन नेटवर्क पीपल. वट एग्जैक्टली दे डिड, उन्होंने फेक बिल्स बनाए कि हमने 90% लोगों को कंसल्टेंसी से हायर किया, एंड दैट कंसल्टेंसी वॉज अ फेक कंसल्टेंसी, और उनकी खुद की कंसल्टेंसी थी, लोग खुद के थे. एंड दिस वॉज कॉट इन अ फॉरेंसिक ऑडिट, गाइज. उनको छुट्टी में भेज दिया, बोथ मिस्टर अशनीर एंड हिज वाइफ. ही वॉज सेंट टू हॉलीडेज बाय द कंपनी इटसेल्फ, कि आप लोग जाओ, हम एक फेयर ऑडिट करना चाहते हैं. And in their absence, the audit was done, and this fraud was mentioned by the auditor. And this is how he got, it was caught that there was siphoning of the money that took place. And इसके अलावा भी साइफन हुई थी बहुत ज़्यादा पैसे. So again, अगर कंपनी का ऑनर ही गाइज अगर ऐसा करने पे आ जाए, then your investments will be doomed. आप कुछ नहीं कर सकते. रिटेल इन्वेस्टर can't do anything. You will not get the time. क्योंकि जब तक आपके पास ये रिपोर्ट आएगी तब तक शेयर प्राइस गिर चुका होगा, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर इज़ हैविंग ओनली वन डिसएडवांटेज, दैट इज़ देयर इज़ डिससिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. उन बेचारों के पास इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में आती है. यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एट द एंड, एट द लास्ट. तब तक शेयर प्राइस नीचे जा चुका होगा. दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओनली. क्योंकि आगे की रिसर्च तो आसान है, मीन्स दो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट दैट विल वर्क. बट ये तो ह्यूमन्स के ऊपर है. इट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस. एंड इफ़ अ पर्सन स्टार्ट्स टू इफ़ इट, अगर किसी ने सोच ही लिया है अगर कुछ गलत करने का, देन यू कांट डू एनीथिंग गाइस. योर मनी इज़ डूम्ड. नाउ अब इसमें ऑडिट कंपनीज एंड बेचारे CA एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों कुछ नहीं कर पाती है गाइज? बिकॉज दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट. इन लोगों ने अपनी खुद की CAs एंड खुद की फाइनेंशियल टीम्स रखी होती हैं. दे मेक लेयरिंग्स गाइस, लेयर के लेयर पैसे को बहुत ज़्यादा घुमाया जाता है कि उसको पकड़ने में ही इट विल टेक ईयर्स टू कैच द फ्रॉड. एंड जब तक वो टाइम पास होगा तब तक द पर्सन वुड हैव फ्लोन समवेयर एल्स. So it is very difficult to catch a financial fraud because it is done with huge planning. Now, Cafe Coffee Day, so famous, everybody must have visited Cafe Coffee Day once in a lifetime, right? So what exactly happened? Coffee Day was growing in a good way. सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था 2000 में, सिर्फ 22 कैफ़े थे, right? There were 200 cafes by 2004, and by 2015 there were 1500 cafes, around 1500 plus cafes. इससे ज़्यादा cafes थे. So they were growing so rapidly. First of all, right? It was first mover. They were the first players in the market, so first mover advantage इनको मिला था. Now guys, why again corporate governance? ये मैं case studies क्यों पढ़ा रहा हूँ? Because जब हमने annual report पढ़नी है ना, उससे पहले यू शुड हैव दीज केस स्टडीज़ इन योर माइंड.
जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पढ़ेंगे, अरे सर ये गलत कर रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, आप खुद पकड़ पाओ। ताकि वेन एवर अ बिजनेस एक्सपैंड्स टू फास्ट, जब भी बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करने की कोशिश करते हैं ना, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। The owner of the Cafe Coffee Day, he started Cafe Coffee Day and then he invested in 10,000 acres land. He purchased 10,000 acres of coffee farms. Good investment. कॉफ़ी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, अच्छी है, राइट? या मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड हिज एम्पायर, फाइन, मुझे ठीक लगा। फिर इन्होंने क्या किया, 6% स्टेक लिया माइंड ट्री कंपनी में, मीन्स प्राइवेट इक्विटी, or he purchased shares of Mindtree, that to around 7%. Not a good investment. Why a coffee company is investing in IT company? Again, a red flag should come in your mind. Then he invested in Tanglin. It was a real estate company. So guys, a coffee business is going so wide that he invested in IT, he invested in real estate. Then he started one more business, that is luxury resorts. डोंट यू थिंक कि ये सारा का सारा इसी दौरान हो रहा है जब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ ही था, इन जस्ट द मैटर ऑफ आई वुड से 10 years. नाउ द थिंग इज दैट डोंट यू थिंक ही शुड हैव इन्वेस्टेड इन कॉफ़ी फार्म्स देन इन अ मिल्क कंपनी और देन इन समथिंग लाइक समथिंग विच इज़ रिलेटेबल टू कॉफ़ी ओनली, बट ही ट्राई टू एक्सपैंड सो फास्ट दैट इस एक्सपेंशन के लिए गाइज ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी। वो पैसा कहाँ से आया, फिर डेट से। तभी आई टोल्ड यू, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, अभी अगर आपने सिर्फ स्टार्ट ही किया है गाइज, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी द डेट ऑफ द कंपनी, कितना लोन है कंपनी के ऊपर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। सो द थिंग इज दैट दिस रैपिड ग्रोथ नीड्स रैपिड डेट, रैपिड मनी, फास्ट मनी, वो सिर्फ डेट से आ सकता है। So he raised a lot of loans, and eventually that person had to commit suicide, with due respect. But the thing is that guys over here, अगर ये थोड़ा slow चला होता business, it could have grown and it could have outperformed today that Starbucks and all the coffee platforms, because it was the first business in coffee, means first starters in the first movers, and they had the first mover advantage. So having high debt एंड वेरी फास्ट एक्सपेंशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। शार्क टैंक इंडिया में भी आपने कई बार सुना होगा, इतना जल्दी मत एक्सपैंड करो, एक ही चीज़ में फोकस करो, बार बार एक चीज़ में फोकस करो। वाई? बिकॉज मोर यू ट्राई टू एक्सपैंड, मोर प्रोडक्ट्स यू ब्रिंग इन, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन गाइज। दिस इज़ वट राइट नाउ इज़ हैपनिंग विद ओला एज वेल। ओला में तो इट्स नॉट इन द केस स्टडी, बट जर्नली ही इज़ ट्राइंग टू डू सो मैनी थिंग्स पैरेलली विच विल इवेंचुअली एंड अप in a huge debt. And it will be, I'm not one to comment, you are very smart now ICICI Bank. Now guys, in last class I had given a statement कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इक्विटी रिपोर्ट बनाना, तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अवॉइड करना। आई वॉज नॉट अगेंस्ट बैंकिंग सेक्टर गाइज, बट जैसे अगली कुछ क्लासेस आएंगी, एंड आई रिसीव्ड मैनी क्वायरीज आफ्टरवर्ड्स एज वेल ऑन लिंक्डइन, दैट सर आई एम फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड, आई वांट टू ग्रो इन बैंकिंग, सो मुझे तो वही करना है। सी गाइज, आई एम ओके विद दैट, आई हैव no grudges against anybody or any sector, but the thing is that for initials, तो for the newbies it's a bit difficult and overwhelming firstly. Secondly, जैसे जैसे अगली 2-3 classes होंगी, you will realize why I said that. So today also you will have some glimpse of that. ICICI Bank, Chanda Kochhar was heading that at that point of time. Now Chanda Kochhar ने, what she did basically, she approved loan of 18,075 crore rupee to Videocon. Videocon was a company जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाते थे, बट वर्थ ऑफ वीडियोकॉन वॉज नॉट दैट मच कि उनको इतना लोन मिल भी पाता, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल देने को इतना था नहीं, एंड दिस वॉज कोलेट्रल फ्री लोन एज सच, दोस्ती में कर दिया। मीन्स आई टेल यू वाई इट वॉज डन। 18,000 crore was done without any much due diligence as well. The Videocon was, Mr. Venugopal was the founder of Videocon. इनकी एक और कंपनी थी सुप्रीम, इट वॉज जस्ट लाइक अ शेल कंपनी। मीन्स इन्होंने क्या किया, आउट ऑफ दिस 18,000 crore 60 करोड़ रुपया यहाँ भेजा सुप्रीम में,
एंड इसको फिर शेल कंपनी से घुमाया, शेल कंपनी 1 से 2 से 3 से 4 लाइक दैट, 10-15 कंपनीज में पैसा घुमाया। एंड वो 60 करोड़ रुपया मिस्टर दीपक कोचर की कंपनी थी न्यू पावर यहाँ भेज दिया विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ समथिंग। चंदा कोचर वॉज वाइफ ऑफ मिस्टर दीपक कोचर। डोंट यू थिंक, हालांकि पैसा काफ़ी घूमा ही है यहाँ से, इतनी सारी शेल कंपनी से फिर जाके यहाँ पहुँचा, बट डोंट यू थिंक कि ये लोन दिया इसलिए गया था कि एट द एंड इसमें से 60 करोड़ रुपया यहाँ पहुँच जाए, फ्री मनी, राइट? एंड आफ्टर सम टाइम दिस 18,000 करोड़ रुपी ऑल्सो बिकेम NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि ये भी पैसा वापस दे ही नहीं पाए। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम had to face trust issues. ICICI Bank had to face the trust issues because of this one decision. बैंकिंग सेक्टर सारा का सारा गाइज ट्रस्ट के ऊपर चलता है, एंड इफ दैट ट्रस्ट गेट्स ब्रीच्ड द शेयर प्राइस फॉल डाउन एंड योर इन्वेस्टमेंट टू विल फॉल डाउन। जस्ट एक छोटा सा गलत डिसीजन और आपका जो इन्वेस्टमेंट है इट्स गॉन। This is what I wanted to say. This is one of the examples I wanted to tell you कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना ठीक है, बट बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा जो चलता है वो ट्रस्ट के ऊपर चलता है। एंटायर बैंकिंग सेक्टर इज वर्किंग ऑन ट्रस्ट एंड सेंटिमेंट। इफ़ द सेंटिमेंट इज हर्ट बाय एनी वे it becomes very difficult, right? One more example, Ruchi Soya. Now this example is quite relatable to Hilton example which I just gave you previously. Now guys, रुचि सोया वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। सोयाबीन से ये सोयाबीन में डील करते थे। दे यूज़ टू परचेज सोयाबीन फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है, बट दे यूज़ टू पे दिस फार्मर्स इन कैश। तो कैश को तो आप यू कांट ऑडिट कैश जनरली, राइट? बिकॉज वो पेपर्स में तो नहीं है। तो सोयाबीन से ऑयल बनता था और फार्मर्स को तो कैश जा रहा था। तो ये जो पैसा जा रहा था, ये जो पैसा आ रहा था, एंड आई वुड से फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, इसको ना इन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज में रोटेट किया, एंड ही टुक अ लॉट ऑफ डेट एज वेल। तो ये कंपनी बहुत बड़े लोन में थी। सो दैट्स वाई दिस कंपनी वॉज ऑक्शनड बाय SBI का डेट था, SBI के पैसे फंसे थे, तो दिस कंपनी वॉज ऑक्शनड, इसकी ऑक्शन की। सो पतंजलि केम इन of Baba Ramdev, he came in and he purchased that company. तो बाबा रामदेव को भी लोन SBI ने दिया, you take loan from us only and buy this company, and then this company was purchased, and now this company was turned into profitable. It's profitable as such. Now it's just like Hilton Hotel example. आप भी कभी लाइफ में बहुत बड़े अगर बिजनेसमैन बनोगे तो इट्स अ गुड बिजनेस स्ट्रेटजी। सस्ती कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनीज को खरीद लो, उसको प्राइवेट कन्वर्ट करो। फिर बाबा रामदेव ने इनको पतंजलि ने इसको प्राइवेट कन्वर्ट किया, दे मेड इट प्रॉफिटेबल, राइट? नाउ अगेन कन्वर्टेड इनटू पब्लिक। सो यू कैन कन्वर्ट अ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, देन अगेन इनटू पब्लिक कंपनी। इट्स अ गुड बिजनेस एज वेल। फाइंड लॉस मेकिंग कंपनीज, टेक इट ओवर। अब टेक ओवर करने के लिए लोन आप बैंक से ही ले लो 70-80%, अपना स्टाफ लाओ, अपनी मैनेजमेंट करो, एंड चेंज द कंपनी इनटू प्रॉफिटेबल, and then sell the company or issue an IPO. IPO जब issue होगा, you will earn a lot of money, loan भी clear, and you make a lot of immense amount of profit on the way. I hope you got the point. Now I want you to go through these case studies in detail, guys. This is an outline I am giving you ताकि आप लोगों को ये चीज़ें माइंड में रहें। We will have one more case study in detail in the coming classes, but ये case study specifically governance के ऊपर ही थी। यहाँ पे भी सब में प्रमोटर्स की ही गलती थी गाइस, एंड आपके पैसे रुचि सोया में तब लगे होते, अगेन योर मनी वुड हैव गॉन। सी यहाँ पे सब कुछ ठीक था कंपनी का, एवरीथिंग वाज फाइन, जस्ट वन रॉन्ग डिसीजन एंड इट वाज गॉन। ना ये एग्जाम्पल तो आपने सुना ही होगा, बट यहाँ पे बिकॉज द वर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट्स वर कमिंग, सो आई थॉट टू एक्सप्लेन, अदरवाइज अगेन इट्स ए होमवर्क। ये तो नेटफ्लिक्स में सीरीज़ भी है, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एज वेल। देवर few stakeholders over here in PNB case study, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी and PNB officials. ये मामा और भांजा थे, uncle and he was his uncle basically. तो PNB officials को क्या हुआ,
नीरव मोदी ने इसमें पैसा नहीं लिया पीएनबी से जनरली, तो इट वाज अ इजी बेट फॉर द पीएनबी ऑफिशियल्स। क्या होता था, अगर इंडिया से ना मुझे कुछ चीज़ इंपोर्ट करवानी है यूएसए से, या इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यू डोंट नीड टू पे इमीडिएटली। अगर आप ना पेमेंट नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बैंक का ना लेटर दे सकते हो दूसरी कंट्री के बैंक को कि दिस इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट, मुझे ये सामान दे दो, पैसे आपको बाद में बैंक दे देगा। सो इसका सीधा सा मतलब होता है कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, पीएनबी ने पैसा नहीं भेजा था इसमें यूएसए को। व्हाट वाज हैपनिंग, नीरव मोदी ने कुछ पीएनबी ऑफिशियल्स को ब्राइब किया। दे सेट कि आप लोग कहाँ रहते हो, सर हम तो बॉम्बे से इतनी दूर रहते हैं। अरे इतनी दूर क्यों ट्रैवल कर रहे हो, मैं आपको फ़्लैट दे देता हूँ बॉम्बे में। तो एक दो को फ्लैट दे दिए, एक को सर मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है एंड आई नीड गुड स्कूलिंग फॉर हिम, ओके आई पे द फी एंड आई ही शुड बी टॉट इन अ गुड बोर्डिंग स्कूल, भेज दिया। एंड द पीपल ऑल्सो, द पीएनबी स्टाफ ऑल्सो बिकेम सो हैप्पी। तो बदले में ही डिडंट टुक एनीथिंग, ही सेड कि ओके मुझे आप सिर्फ एक लेटर लिख के दे दो, लेटर ऑफ क्रेडिट, मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए यूएसए से एंड आई विल पे इट लेटर ऑन। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक बार लिया, अच्छा लग गया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, ही जस्ट केप्ट ऑन डूइंग दैट। नाउ थिंग इज दैट ये ऑडिट में इसलिए नहीं आया बिकॉज इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, अ लेटर जो पीएनबी ने दिया था, हाँ हाँ इनको सामान दे दो, विल पे इट लेटर ऑन। इनको लगा हाँ ही विल पे इट लेटर ऑन बिकॉज अब थोड़ी ब्राइब भी गई हुई थी, राइट। एंड दे यूज स्विफ्ट एज वेल। स्विफ्ट हमने शायद पिछली क्लास में किया है, इट इज़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजेक्शन होती है यू नीड टू यूज़ स्विफ्ट फॉर डैट। जैसे हमारे यहाँ पे रहता है आईएफएससी कोड, वैसे स्विफ्ट कोड होता है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ना। इस सारे में क्या हुआ, जो पीएनबी के लेटर्स थे दैट वाज यूज्ड बाय नीरव मोदी अगेंस्ट एचडीएफसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल। बट ही डिड, वो लेटर के अगेंस्ट यहाँ से भी पैसे ले लिए, लोन उठा लिया कि यार देखो मेरे पास लेटर्स है, आप मुझे लोन दे दो थोड़ा सा। तो यहाँ से भी थोड़ा लोन ले लिया, यहाँ से भी लोन ले लिया, फ़ौरन से सामान भी ले लिया, लाइक दैट। एंड करते 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 द अमाउंट वेंट अप टू 13,000 करोड़ गाइज। और ये पकड़ा इसलिए नहीं जा रहा था बिकॉज दीज वर जस्ट लेटर्स गाइज, नो मूवमेंट ऑफ मनी वॉज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे कोई पैसे की मूवमेंट हुई नहीं अभी तक। कुछ सालों के बाद जब एच डी एफ सी एंड इंटरनेशनल बैंक्स दे स्टार्टेड आस्किंग कि यार पैसा दे दो लेटर के अगेंस्ट, तब तब इट वॉज अ बिग ह्यू एंड क्राई व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड asking their money back, means against the letter of credits. And then it became a big issue, and that was too late guys, too late. This is what I wanted to say. Whenever a fraud is done by the promoter, it becomes, I am so sorry, uh, Suva Lakshmi, I'm sorry, I will be sticking to English only. I thought many of you understand Hindi, so that's why I used Hindi a bit. Don't worry, I will be careful from next time. Any other doubts? So this is how it went. So because of this, because of this, the entire stock price of PNV went down, and again a very negative sentiment against the banks, and it was very difficult for the banks to go up again. So it was a big, see guys, again everything what is happening over here is because of one promoter. If one promoter is wrong and he plans to do something illegal, even if you have done all the research, all the equity, you have followed all the research tools, again it will rebound, and it will really impact your investments. So that's why it's very important. This will be a homework guys. Reliance from the side of Mr. Anil Ambani. Why this part of Reliance failed, means Reliance Power, Reliance Communication, why it failed. I want you to go through it. Reliance was Reliance, right? But why it happened that Reliance, which was under Anil Ambani, it didn't do well, whereas Reliance under Mukesh Ambani did wonders. Why it happened? Again, it was again because of the promoter only, because he had everything, access to the finances of the bank. He could have taken loans so easily. He had access to all the politicians. He was a big name in India. Still it failed. Why? Because the promoter was not competent enough, mismanagement, huge loans. So again guys, as I was saying, repeating myself, if the promoter is not good, your money, even if you have done the research, it will doom. Again, it's a homework guys. Watch this series on Netflix. One thing,
Second, watch this thing, a podcast on that 4 hours podcast on Raj Shamani channel on Kingfisher Airlines. We will be discussing it someday else as well, but you will get a lot of idea. Again, over here, it was just because of promoter. The money of shareholders, it was really very badly impacted. I hope you got the point. This will be your case study, right? Satyam, again, you should be knowing this case study. Very important. It was one of, again, a governance failure. These all were governance failures. Why it failed? It will really blow your mind. Yes, bank, I would like to explain a bit, right? Though it's your homework. For those who wanted to invest their money in banking system, see what happened over here. Yes Bank was doing good, shares were good. It was the volumes of the shares that was being traded on stock exchange was very very good. Everything was going positive. All of a sudden, in board of directors, a new director comes, right? And he was very big risk taker. What he did, he gave very bad loans. He thought that it will be easy to recover those loans, but because of that, and he did very highly risk averse. He did some investments which were very very risky, and he invested the money of depositors in those investments. See, aapka paisa, you are the depositor. I invested your money somewhere else which was very risky, and that risky investments failed. So our outcome of that was that your money, the depositors money, also got stuck. And because the depositors money got stuck, when you came to withdraw your money, I didn't have the money. It collapsed, guys. So the loans which he had given, that was also risky. They also didn't pay it back. It also turned into NPA. So one person changed the entire scenario of the bank. It was doing good before that. So that's why I'm saying promoters can really impact the investments. And who is investing? You and me, we are hard working normal citizens of India, guys. So our investment will become zero if such kind of person comes as a promoter. I hope this is clear, everybody. So in the next coming classes, what we will be doing, Sahara will be your homework. I want you to see the case study of Sahara as well. I hope you will be doing your homeworks diligently. You just have to lie down, start your YouTube and Netflix and watch these documentaries. It will be more than sufficient. It will really help you out, guys, right? One more example: don't invest in the companies where promoters are too much politically inclined. Don't invest. We will think, sir, Reliance is pro BJP, Mr. Adani is pro BJP. But guys, I would like to tell you one thing over here. Reliance doesn't only give donations to BJP only. It gives donation It's to 2 all the o'clock. political parties. They are more smarter than us. We think that Reliance is more pro BJP. No, guys. Reliance is pro BJP. Reliance is pro Congress. Reliance is pro every political party. Because whosoever party comes, no, they will sustain. Reliance will be there. Parties will come and go. And they know that very carefully. It's just we are emotional fools. We think Mr. Adani is pro BJP, but it's not like that. I want you to see the episode of Rajat, Aapki Adalat, of Mr. Rajat Sharma. He asked the question specifically and he really provoked Mr. Adani to say something against Mr. Rahul Gandhi. So what he said over there, Rahul Gandhi is a very good person. Yes, he can handle the country as well. Mr. Adani said this. हम लोग, what we think that Mr. Adani is pro BJP. No, guys, these corporates, these are pro everybody. It's just we think they are pro one party. I hope you're getting the point. But the thing is that, guys, it's a red flag if a company is politically too much inclined to one party. Because if the party changes, it will really impact the investments. And if any decision is taken against the company by a new political party which is having opposite opinions, so again investments will be affected, the company will get affected, company will not get new projects. So why to invest in such company? So you should think, we are not here as a political analyst. We are here as a financial analyst. We have to keep our biasness aside, and then we need to invest.
case study of Zomato, guys, we will be doing in our coming classes, right?